So let us quickly revise what we had completed yesterday. So yesterday the major thing that we done was our normalization was 1NF and 2NF. So basically finding out keys and then minimal set equivalence of two functional dependency set. That is all. I'm assuming that it is revised by you. We'll just quickly revise second 2NF. So 2NF requires us to have no partial dependency for any given functional dependency. What do you mean by partial dependency is on LHS determinant side you cannot if you have a prime attribute, then on RHS you cannot have a non-prime attribute. Oh, so you can have a non-prime attribute, that is partial dependency. So we did not require partial dependency in any of the functional dependency given with you. Okay, so the logic state being is when your one of the prime attributes can itself derive a non-prime attribute, then why do you need a key? And hence, why do you need to have that non-prime attribute in the first place in the table, right? So why not make a different table where the primary key for that table is the prime attribute which derives that non-prime attribute. So the table would now have the prime attribute that we have considered and the non-prime attribute only. Okay, so this would allow us to have the primary key in the new table as the prime attribute of the parent table, and hence it will serve as the key for that new table. Fine, and hence we can say that some of the repetitions or the redundancy will now be reduced in the parent table. Okay, so yeah. So today what we'll be doing is we'll be studying the 3NF today. So what is 3NF? Basically 3NF is another stricter form than 2NF, which helps us to reduce more redundancy. Okay, so basically 3NF says that we do not we do not require to have a transitive dependency. Okay, so anyone here would like to list out what is what are the things that are required that what are the what is the definition of transitive dependency? Anyone, please? If means if we can find out B with the help of A and C with the help of B, then we can say that A and C are transitively dependent. Okay, so With who would? constraints of non-prime attributes. Okay, fine. So I would like to say this is a like partial definition for it and not the exactly thing that we require. Okay, so I would let you know the exact thing. So basically transitive dependency means uh, when you can derive a non-prime attribute using key of the table you or using what you can say yeah, using key of the table but not directly. Okay, for example, I say that pin code, I have employee ID, I have pin code, and I have city name. Okay, so though employee ID can be directly used to derive no what I can say that employee ID can be used to determine the city name, but how? Using the pin code. Okay, so employee ID first has to ask the pin code, first has to search for a pin code, and then that particular pin code will be mapped to a city name. Okay, so what does transitive dependency say? When you use a candidate key to determine a non-prime attribute, but via or through another non-prime attribute, okay, then that kind of dependency is said as transitive dependency. So basically, uh, here pin code is determining city name, okay, and that is non-prime is determining another non-prime, and hence the key has to take help of a non-prime attribute to derive another to determine another non-prime attribute. ठीक है, समझा? It is not basic. ऐसा नहीं है कि just non-prime determine non-prime. The key has to consult a non-prime which can determine another non-prime attribute. Basically, ठीक है? So the logic is pretty simple. If a non-prime attribute can derive another non-prime attribute, ठीक है? So why do I require a key in the first place to determine it? उससे क्या होगा? मेरा redundancy बढ़ जाएगा basically. What I'll do, I'll make a new table. I'll put the both non-prime attribute over there. और मैं पिन कोड वाले को पेरेंट टेबल में भी रखूंगा एंड पिन कोड वाले को मैं सेकंड टेबल में भी रखूंगा. इससे मेरा लॉसलेस कैसे गारंटी होगा? जो पिन कोड रहेगा मेरा पिन कोड मेरे सेकंड टेबल का प्राइमरी की होगा. सो जब भी आई वांट कि एम्प्लॉय आईडी 1 का मुझे सिटी नेम बताओ, व्हाट आई विल डू, एम्प्लॉय आईडी 1 का फर्स्ट आई फाइंड पिन कोड फ्रॉम द पेरेंट टेबल
then that pin code wala column will serve as foreign key for parent table, and it will refer to the another next wala table, और फिर जब join के through we can determine कि what is the city name, basically ऐसा, ठीक है. So logic pretty simple है. जब मेरा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पा रहा है, तो अगर मैं उसको टेबल में रखता हूँ अपने पेरेंट टेबल में, तो मुझे की का सहारा ही लेना पड़ेगा. तो ऐसे क्यों करना, इससे मेरी रिडंडेंसी बढ़ेगी, इसीलिए आई विल मेक अ न्यू टेबल फॉर इट बेसिकली, ठीक है. सो प्लेन है, एकदम सिंपल है, ठीक है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. पहले हम कैसे गए, जब मेरा एक प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर पा रहा है, सो मैं पूरा की क्यों यूज करूँ अपने टेबल का, उससे अच्छा मैं एक नया टेबल बना दूं जहाँ पे वो वाला प्राइम एट्रीब्यूट रख दूं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट रख दूं. नए टेबल का मेरा की जो बन जाएगा वो प्राइम एट्रीब्यूट बन जाएगा, पेरेंट टेबल वाला, ठीक है. ये मेरा हो गया 2NF. देन 3NF में सबसे पहली चीज जो तुम्हें बोलनी है, इट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल योर टेबल शुड बी इन 2NF. पहले थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला तो फॉलो करने दो उसे, अगर वही नहीं फॉलो कर रहा तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट वो कैसे हैंडल कर पाएगा. सो 3NF से पहले 2NF में रहना चाहिए. देन इट सेज कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए. हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी डिस्कस, ठीक है. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए. सो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक नया टेबल बनाएंगे जहाँ पे पिन कोड विल बी द की एंड सिटी नेम विल बी द विच इज बीइंग डिटरमाइंड बाय पिन कोड. और पिन कोड को हम पेरेंट टेबल में भी रखेंगे और उसको रेफर कर देंगे पिन कोड ऑफ द न्यू टेबल. क्लियर? हाँ. सो दिस वाज 3NF. ओके. So now going on, any doubts regarding 3NF? Please be quick. Okay, I'll take it as a no. समझ So गया. yeah. नहीं कुछ नहीं समझ गया. Okay. So I'll take it as a no. 44 page number. We were on page number 43 now for 3NF, and now we'll move to page number 44. Okay, we have a summary over there. So for 2NF, 3NF, for 2NF file decomposition, identify those FDs which have partial dependencies, PDs. Find closures of the determinants and split table accordingly. Okay. So we'll see the examples of splitting. Once all subtables are brought to 2NF, check for any transitive dependencies present. Now, so note transitive dependency is not just NP determines NP, it is P determines NP via a NP. Okay. Decompose further by evaluating closure of P, मतलब क्लोजर ऑफ प्राइमरी एट्रीब्यूट, ठीक है. सो नेक्स्ट वन, इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज. पहले हम विल स्टडी BCNF, पेज नंबर 47 पे है. सो BCNF से इसकी थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दो अभी इस चीज को, ठीक है. सो BCNF में क्या बोला जाता है कि मेरा कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी रहने दो, लेकिन LHS मेरा LHS मेरा की ही रहेगा, इधर अ सुपर की और अ कैंडिडेट की, कुछ भी, लेकिन की ही रहेगा, ठीक है. फॉर एवरी डिपेंडेंसी प्रेजेंट इन F मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी शुड हैव डिटरमिनेंट और LHS एज सुपर की और कैंडिडेट की इटसेल्फ. करेक्ट. ये हो गया BCNF. इतना सही है बस. हाँ, BCNF का पहला कंडीशन ये है कि पहले तो 3NF में रहना चाहिए, पहले उससे कम वाले स्ट्रिक्ट में रहना चाहिए, उसके बाद ही वो ज्यादा स्ट्रिक्ट और हैंडल कर पाएगा, ऐसा, ठीक है. तो 3NF में है मतलब 2NF में, 2NF में है मतलब 1NF में, ठीक है. तो BCNF से पहले 3NF में ला लो उसको, उसके बाद ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी में गारंटी करो कि योर LHS और डिटर्मिनेंट इज सुपर की और कैंडिडेट की खुद से ही, ठीक है. ये बस इतना सा है BCNF. फाइन. सो बेसिकली नाउ गोइंग ऑन टू प्रॉब्लम्स. अभी एक चीज आई वुड लाइक यू टू नो इज कि अभी जैसे 3NF है, ठीक है. तो 3NF क्या बोलता है, मेरा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मेरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव करना चाहिए, और LHS वाला नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है, it should not act a mediator between the prime and another non-prime attribute. It should not act as a mediator between key and another non-prime attribute. Basically मेरा 3NF ये बोलता है. So what I'll say, अगर मुझे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं रखना है, ठीक है, तो पहले मैं देखता हूँ अपना वो वाली जो मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना, नॉन प्राइम डिटरमाइन नॉन प्राइम, मैं उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है. मैं उसमें थोड़े से चेंजेस लाऊंगा. सो आई विल से कि अगर मैं उसमें RHS में अगर मैं नॉन प्राइम रखूँ ही नहीं, ठीक है. सो व्हाट आई कैन हैव इन RHS, मैं RHS में क्या रख सकता हूँ अगर मैंने नॉन प्राइम नहीं रखा. पहली चीज, ठीक है, फॉर अ फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉट हैविंग नॉन प्राइम डिराइव नॉन प्राइम, व्हाट आई विल से कि
आरएचएस में मैं नॉन प्राइम को चेंज करके और कुछ रख देता हूँ, ठीक है, फिर मेरी वो वाली प्रॉब्लम चले जाएगी कि नॉन प्राइम डिराइव नॉन प्राइम. सो आई विल से कि इन आरएचएस आई विल कीप ईदर अ प्राइम एट्रीब्यूट और अ की, बट लॉजिकली स्पीकिंग समथिंग डिराइव्स की इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, समथिंग डिराइविंग डिटरमाइनिंग की इज नॉट पॉसिबल, हेंस आरएचएस में मेरा कभी की रह नहीं सकता. सो आई विल से कि आरएचएस में मेरा प्राइम एट्रीब्यूट रहने दो, ठीक है. देन आई कैन से कि वो वाला जो पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इट विल नॉट सर्व एज अ बैरियर फॉर 3NF, राइट. सो हम कैसे गए पहले पहले. हाँ, एनीवन कुछ बोलना है? वो आरएचएस में क्यों? वेट, मैं बता रहा हूँ, ठीक है. देखो मैं गया कैसे. 3NF का अपना बैरियर क्या था कि कोई भी एक ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाने दो जिसमें तुम्हारा व्हाट आई कैन से नॉन प्राइम डिराइव नॉन प्राइम है, ठीक है, एंड देन LHS वाला जो नॉन प्राइम है, इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन की एंड द RHS वाला नॉन प्राइम, राइट. ये अपना बैरियर था. 3NF में नहीं था, इसीलिए मतलब अपना जो टेबल है वो 3NF में नहीं है, उसके लिए बैरियर है नॉन प्राइम डिराइव नॉन प्राइम, ठीक है. सो व्हाट आई विल से, ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या बोलता हूँ कि RHS में जो नॉन प्राइम है उसको मैं नॉन प्राइम नहीं रहने दूंगा, पहले तो उसको मैं कुछ चेंज कर देता हूँ. सपोज कर लो, ठीक है, सपोज कर लो, उसको आई विल चेंज एंड कीप इट एज ईदर अ प्राइम एट्रीब्यूट और अ की. ओके, सो अगर मैं उसको की रखता हूं, सो इफ समथिंग डिटरमाइंस की, दैट्स नॉट पॉसिबल लॉजिकली स्पीकिंग, राइट. सो व्हाट आई विल से कि RHS में आई विल हैव अ प्राइम एट्रीब्यूट. सो अगर मेरा RHS में प्राइम एट्रीब्यूट है कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में, व्हाट आई कैन से, वो वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी 3NF में हो, मतलब वो वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी 3NF के लिए बैरियर नहीं रहेगी. क्लियर? ओके, बट इसका एग्जांपल से समझा ना भैया, मतलब तो ज्यादा क्लियर होगा ऐसे. ठीक है. सो व्हाट वी कैन से, एग्जाम्पल तो ठीक है बाद में लेता हूँ, बट इट्स प्रीटी सिंपल, ठीक है. मेरा 3NF को बैरियर क्या था कि नॉन प्राइम डिटरमाइंस नॉन प्राइम, ठीक है, ये मेरा एक बैरियर था. सो बैरियर नहीं रहना चाहिए, उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, RHS में नॉन प्राइम रहने ही मत दो, या तो फिर LHS में नॉन प्राइम रहने ही मत दो, राइट. पहले हम वो वाला केस डील करेंगे जिसमें RHS में नॉन प्राइम रहने ही मत दो, उसको पहले हम देखते हैं, ठीक है. सो RHS में नॉन प्राइम रहने ही मत दो, पहली तो चीज, ठीक है. तो RHS में अगर मैं नॉन प्राइम नहीं रखता हूं, RHS में इफ आई डोंट कीप नॉन प्राइम, व्हाट आई कैन कीप ईदर अ की और प्राइम एट्रीब्यूट, राइट. की मैं रख नहीं सकता हूं, लॉजिकल. प्राइम एट्रीब्यूट में रख सकता हूं. सो अगर मुझे कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी दिख रही है, if I'm able to see some functional dependency which has RHS में सिर्फ प्राइम एट्रीब्यूट, LHS देखो ही मत, भूल जाओ LHS को, ठीक है. RHS में अगर मेरा प्राइम एट्रीब्यूट आ गया, सो वो वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी कभी भी एज अ बैरियर एक्ट करेगा क्या 3NF के लिए, बिकॉज 3NF रिक्वायर्स नॉन प्राइम ऑन RHS एज वेल एज LHS. लेकिन अगर मेरा RHS ही प्राइम हो गया, सो काइंड ऑफ समझा. समझा. हाँ. सो अभी कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, अभी मैं RHS कुछ भी रहने दो. नाउ आई विल कंस्ट्रेंट, नाउ आई विल रेस्ट्रिक्ट LHS. अब मैं क्या बोलूंगा, LHS को कभी नॉन प्राइम रहने ही मत. सो LHS मेरा क्या क्या हो सकता है, इधर अ प्राइम और अ की, ठीक है. अब प्राइम क्यों नहीं हो सकता है, आई विल टेल यू. अगर प्राइम रहा, ठीक है, और RHS में अगर मेरा नॉन प्राइम आ गया, ठीक है, आई एम सेइंग आ गया, नॉट है, मैंने ऐसे फोर्स नहीं करके रखा है कि RHS में नॉन प्राइम ही. आई सेड RHS में कुछ भी रहने दो, बट अगर नॉन प्राइम आ गया तो मेरा 2NF वायलेट हो जाएगा, ठीक है. सो आई कैन रिस्क दैट. इसीलिए LHS में अगर मेरा की है, LHS में अगर मेरा की है, so that functional dependency cannot serve as a barrier for 3NF. So basically this is the kind of shortcut, ठीक है, in which you say अगर एक फंक्शनल, तुम हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखो, for each functional dependency check if LHS is the key or I said or RHS is the prime attribute. अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है for each and every functional dependency, then you can say directly without checking it for 2NF, तुम directly बोल सकते हो टेबल इज इन 3NF, ठीक है. बेसिकली हम जाते कैसे हैं प्रोसेस में, फर्स्ट वी चेक फॉर 1NF, ठीक है. अगर 1NF हो गया तो हम 2NF की तरफ जाते हैं. अगर 2NF भी हो गया सो विल गो फॉर 3NF, ठीक है.
तो ये जो भी मैंने मेथड बताई, इट इज काइंड ऑफ अ डायरेक्ट जंप टू 3NF विदाउट चेकिंग फॉर 1NF देन 2NF देन 3NF, ऐसा नहीं। तो डायरेक्टली यू कैन चेक फॉर 3NF, अगर 3NF है तो 2NF भी है ही, बिकॉज 3NF रिक्वायर्स टू हैव 2NF। ओके, अगर 3NF नहीं है देन यू नॉट चेक फॉर 2NF। ठीक है, वेन डायग्राम से इमेजिन करो। सो 1NF कैसा है, 1NF का सबसे बड़ा राउंड सर्कल है, उसके अंदर कम्स 2NF, उसके अंदर कम्स 3NF, उसके अंदर आता है BCNF। सो अगर तुम्हारा 3NF नहीं है, मतलब तुम्हारा व्हाट वी कैन से, छोटे से अगर मैं बड़ा जाऊं तो सेकंड जो छोटा सेकंड जो व्हाट आई से, अगर मैं छोटे से बड़े की बात करूं तो सेकंड वाला जो सर्कल है वो उसको तुम शेड नहीं करोगे। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा रीजन ऑफ क्या है, मतलब कंसीडरेशन जो है सेकंड वाला सर्कल छोड़ के उसके बाहर वाला है। सो इट कैन बी 2NF नाउ, अगर वो 3NF नहीं है सो इट कैन बी 2NF, अगर वो 2NF नहीं है सो इट कैन बी 1NF, राइट। तो हम जब शॉर्टकट से जाएंगे, हाउ वी विल डू, हम डायरेक्टली पहले कंडीशन चेक करेंगे फॉर ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी, LHS की और RHS प्राइम। ओके, अगर एक भी फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी आ गई जिसमें ये वाला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, व्हाट वी कैन से वो 3NF में है ही नहीं, एंड बिकॉज इट इज नॉट इन 3NF इट कैन नॉट बी इन BCNF। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो 2NF में भी नहीं है, राइट। हो सकता है वो 2NF में हो, बट वो उसकी सेकंड वाली जो कंडीशन है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, वो वाली ने उसको व्हाट से बैरियर, वो वाली एज अ बैरियर एक्ट हो गई, इसीलिए वो 3NF नहीं हुआ। सो अगर 3NF नहीं है सो BCNF भी नहीं है, एंड देन वी हैव टू चेक फॉर 2NF। ठीक है, अगर 2NF भी नहीं है सो इट मे बी 1NF, इट मे नॉट बी 1NF, डिपेंड्स, वी हैव टू चेक। फाइन। सो जब सिस्टमैटिकली जाएंगे व्हाट विल डू, पहले हम टेबल को देखेंगे 1NF में है, अगर है तो ठीक है आगे जाओ, फिर वील सी कि 2NF में है तो आगे जाओ, वील सी 3NF में है तो आगे जाओ, और BCNF में है, सॉरी 3NF में अगर है सो वील चेक फॉर BCNF। अगर शॉर्टकट से जाएंगे व्हाट विल सी, डायरेक्टली विल जंप टू 3NF फॉर ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक। LHS इज की एट्रीब्यूट, सॉरी की सेट ऑफ की, सिर्फ की, एंड और RHS इज प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर हर फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए दिस सेटिस्फाइड देन योर टेबल इज इन 3NF, अगर नॉट सेटिस्फाइड देन BCNF भी नहीं होगा। ठीक है, देन 2NF हो सकता है या नहीं भी होगा, सो चेक फॉर इट। सो अगर 2NF नहीं है या भी है तो अगर है तो 1NF में हो गई, अगर नहीं है तो चेक फॉर 1NF। क्लियर, राइट। नाउ इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स रिगार्डिंग द नॉर्मल फॉर्म्स प्लीज आस्क। भैया एक बार एग्जांपल्स ले लो, फिर उसके बाद होंगे तो डाउट्स तब पूछते, क्योंकि मतलब एग्जांपल्स में क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, ओके। कौन से पेज पे थे? ये तो 49 50 से करते हैं। Okay, so we'll come on page number 45. ठीक है, the same problem that we solved yesterday, but only for what did we do there? हमने सिर्फ उसको 2NF के लिए सॉल्व किया था, राइट। सो कंटिन्यूइंग फर्दर, ठीक है, हम लोग के पास अभी 4 रिलेशंस आ गए, R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, सो नाउ इन R1 अपने पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो एक ही है, AB डिटरमाइन C, एंड C के देयर वाज व्हाट वाज C के, AB था। ठीक है, तो AB डिटरमाइन, भैया हाँ कौन सी पेज पे हो? 45। ओके, Yeah. So AB determines C for R1. AB itself is a key. So key derives non-prime. This does not violate. This is not a transitive dependency. Hence, this table guarantees 3NF. Fine. Then coming on to next one, R2. BD derives CF, determines CF. BD itself is a key. Hence, this can also not violate 3NF. R3. AD determines GH and H determines J. Key is AD. But it determines J. Both are non-prime. LHS be non-prime, RHS be non-prime. Hence, this will violate your 3NF. So what we will do now? अभी हम क्या करेंगे, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी ने वायलेशन किया पहले तो उसके जो एट्रीब्यूट्स है उसको एक नए टेबल में डाल दो। सो कीप H and J in a new table. उसके बाद H can serve as the key for
तुम्हारा ये जो है h, ठीक है, h डिटरमाइंस j को एक नए टेबल में डाल दो, देन ADGH को एक टेबल में रहने दो पेरेंट टेबल में, एंड h डिटरमाइंस j इन फॉर न्यू टेबल, सो h जो है वो कॉमन है, एंड देन वी विल सी कि h इज h कॉमन है क्योंकि so h determines j, because of this the new table will have h as the candidate key, right? So इसीलिए we can say this is lossless because the common attribute serves as a key for at least one table, hence we say this is lossless decomposition. Now check for the new tables, ठीक है? So नीचे मैंने लिखा है R3 h determines j not in 3NF, then I have split into R31 and R32. So R3 जो अभी रहे, R31 जो रहेगा उसमें ADGH आएंगे, उसके लिए जो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो which we will take is AD determines GH, where AD can serve as the key for the table, and R32 जो है उसके लिए we have functional dependency as H determines J, so H will serve as the key for that table. So now check for transitive dependency in those tables R31 और R32 में, so नहीं हो गए obviously, ठीक है? Now coming on to R4, A determines I, A itself is a key, hence you cannot have transitive dependency over there. Hence our complete problem now we have solved, and we have bought each and every table to satisfy 3NF form. Okay, ठीक है? Now we'll check for BCNF. So अभी रुको एक बार, ये वापस समझाओ, मेरे को नहीं समझा कौन सा? ये पूरा एग्जांपल। वो स्प्लिट कैसे किया, मतलब वो छोटे टेबल्स आए कैसे, मतलब स्टार्टिंग वाले ABC BD F वगैरह? So कल हुआ था ना ये चीज, एक बार प्लीज बता दो। ठीक है? सो मैंने कल क्या बताया था कि whenever you want to decompose, so basically तुम वो वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टार्ट करोगे जो तुम्हारा वायलेशन कर रहा है, which is acting as a barrier kind of, ठीक है? सो ऊपर जो दिए हुए हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज, तो हम लोग उससे की डिटरमाइन हमने कर लिए कि अपना ABD आ गया. विल चेक फॉर द फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी नाउ. AB डिटरमाइन C, इट वायलेट सेकंड NF 2NF फॉर्म, दैट इज बिकॉज वहाँ पे प्राइम डिराइव्स नॉन प्राइम है, ठीक है? बिकॉज AB इज अ सेट ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट, तो पूरा की नहीं है, एंड इट डिराइव्स C विच इज नॉन प्राइम. सो इसीलिए विल कीप ABC इन अ डिफरेंट टेबल नाउ. उसका एक नया टेबल बना दो. सेम गोज विद BDEF, उसका भी एक नया टेबल बनेगा. क्यों? बिकॉज BD डिटरमाइंस EF, इट वायलेट्स योर 2NF वाली नहीं, हाँ 2NF वाली कंडीशन वायलेट कर रहा है, दैट इज प्राइम डिटरमाइंस नॉन प्राइम. सो इसीलिए उसका भी एक नया टेबल बना दिया. हेंस ADGHJ का भी एक अलग टेबल बना दिया हमने. अभी टेबल बनाते व्हाट यू हैव टू सी कि अभी जो मैंने ये AB डिटरमाइंस C जो फंक्शनल डिपेंडेंसी ली, सो इट ये मेरा वायलेट कर रही थी 2NF को. सो इसीलिए व्हाट डिड आई डू, व्हाट आई विल डू इज AB का जो क्लोजर होगा दैट आई विल इवैल्यूएट, ठीक है? वो उसके पूरे क्लोजर वाले एट्रीब्यूट्स को मैं टेबल में डाल दूंगा. नॉट जस्ट AB डिटरमाइंस C, ABC को जस्ट मैं टेबल में नहीं डालूंगा, AB क्लोजर को आई विल पुट इन द टेबल. सो AB क्लोजर वाज ABC, हाँ, सो AB क्लोजर, हाँ ABC है AB क्लोजर, एंड देन I भी है. सो व्हाट यू कैन डू, उसको ABCI रख दो, फाइन, ठीक है? बाद में हम देखेंगे कि वो कैसे स्प्लिट होगा. अभी के लिए आप डायरेक्टली रिटर्न यू कैन राइट डायरेक्टली इफ यू हैव प्रैक्टिस इनफ प्रॉब्लम्स, तुम्हें समझेगा वो कैसे हुआ वो. सो अभी के लिए व्हाट यू डू इज ABCI को एक टेबल में रख दो, ठीक है? देन सेम गोज विद BD डिटरमाइंस EF, सो BD क्लोजर विल बी BDEF, उसको मैंने एक टेबल में रख दिया. एंड सेम कम्स विद AD क्लोजर जो आएगा ADGHJ आएगा, ठीक है? अभी R1 को जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज अप्लाई होगी वो होगी AB डिटरमाइंस C, फाइन, AB डिटरमाइंस C एंड A डिटरमाइंस I. अभी देखने वाली बात ये है AB डिटरमाइंस C इज फाइन बिकॉज की इज डिराइविंग नॉन प्राइम, बट A डिटरमाइंस I, यहाँ पे प्राइम डिराइव्स नॉन प्राइम फिर से आ गया, हेंस वी विल रीस्प्लिट द टेबल. सो R1 को विल स्प्लिट इनटू R12 एंड R11 एंड R12. R11 you can say ABC, R12 you can say AI. Cool. Same goes with R2, R3, and then अभी क्योंकि अभी 2NF में है, now for each table we will be checking for 3NF, and अगर नहीं है so split more. Fine. Now we will check for BCNF. ठीक है? Now finally अपने पास एक और इसमें डाउट है, लॉसलेस अब ये 3NF में जब कन्वर्ट हो रहा है, जब अपन ADGHJ को स्प्लिट कर रहे हैं ADGH एंड HJ में, तब बोल रहे हैं कि लॉसलेस हो रहा है, ठीक है? एक डाउट है कि हम कैसा कर रहे थे कि अब सपोज एक सुपर टेबल है और उसको अपन ने दो सब टेबल्स में स्प्लिट कर दिया,
तब जो कॉमन थिंग है ना वो एज अ की एक्ट करना चाहिए एक टेबल में किसी तो, सही है। हम्म बट कंसिडर कि एक सुपर टेबल है वो कुछ मल्टीपल टेबल्स में कर रहा है, जैसे यहाँ पे हम्म स्टार्टिंग में ही जब हम्म 2NF में डाल रहे वगैरह वगैरह, right, तब उस केस में कैसे डिटरमाइन करेंगे, मतलब कौन से इसमें होना चाहिए वो एज अ कैंडिडेट की, या वो एक्सप्लिसिटली दो दो टेबल का कंसिडर करके करेंगे, मतलब अभी ABC और BDEF ये दो जो टेबल है इनमें चेक करेंगे कि एक जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है वो एज अ कैंडिडेट एज अ की एक्ट कर रहा है कि नहीं, वैसे चेक करना okay. है ना लॉसलेस के लिए। हाँ, मतलब लॉसलेस के लिए विल चेक बाय दैट थिंग ओनली। तो अगर इसमें कंसिडर किया तो सपोज अभी अपने पास 5 टेबल्स है, R1 R2 R3 R4 एंड R5 वो HJ हम्म वाला, सही है। तो ओके इसमें अभी ठीक है R3 और R5 में टैग कर रहा है कि H जो कॉमन था वो R5 में कैंडिडेट की ऐड कर रहा है H, ठीक है। ओके सेम अपन R1 और R4 के लिए बोल सकते हैं, बट ओके। R1 R2 के लिए नहीं बोल सकते ना, लाइक। सो R1 R2 के लिए तुम नहीं बोल सकते हो। सो ये ऐसा है केस कि सपोज व्हाट यू कैन से कि अभी जो, हाँ, सो सपोज तुम्हारे पास एक मेजर टेबल था, ठीक है। व्हाट डिड यू डू नाउ, सपोज तुमने उसको पहले दो में स्प्लिट किया, ठीक है। तो दो में जब तुमने उसको स्प्लिट किया, यू हैव टू चेक दैट कि वो दोनों लॉसलेस डिकम्पोजिशन फॉलो कर रहे हैं। सो अभी ये जो प्रोसीजर पे अपन अभी जो गए ना, सो इसमें हमने कैसा किया कि पहले जो जो अपनी फर्स्ट वाली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना, जहां पे मैंने वन के आगे एक एरो डाल के लिखा है P D and P, ठीक है। सो पहले मैंने टेबल को उसके रिस्पेक्ट में स्प्लिट किया। तो व्हाट डिड आई डू, ABC मैंने एक टेबल, ABCI मैंने एक टेबल में रखा, सपोज R1, ठीक है। एंड R2 को मैंने बाकी सब एट्रीब्यूट्स दे दिए, ठीक है। ये आई हैव रिटन एज, मैंने पैरेलल यहाँ पे फॉर योर क्या बोल सकते हैं कि अगर डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। पैरेलल मैंने आई हैव रिटन डायरेक्टली, बट एक्चुअल में व्हाट डू वी डू, वी गो सिक्वेंशियली। पहले मैं ABC को एक टेबल बना दूंगा, देन द ABCI को एक टेबल बना दूंगा, देन द रिमेनिंग वंस, ठीक है, DEF एंड देन HJ, और बाकी उसमें क्या क्या बचता है, यू विल हैव AB ऑल्सो रहेगा वो वाले टेबल में, न्यू वाले टेबल में, सॉरी सेकंड वाले से टेबल में, ठीक है। सो ये वाले टेबल में यू विल हैव ABCI, एंड वो वाले टेबल में I को छोड़ के बाकी सब रहेंगे। I को छोड़ के या और I और C को छोड़ के बाकी सब रहेंगे वहां पे, फाइन। तो तो स्टेप बाय हाँ, स्टेप करेंगे, तब हर एक स्टेप में चेक करना है ना लॉसलेस का। एग्जैक्टली हर एक स्टेप में चेक करना है। और हाँ, तो और अभी जो तुम्हारा R1 जो है, R1 से और दो टेबल्स निकलेंगे। सो एक टेबल होगा ABC और एक होगा AI। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे R2 को और स्प्लिट करते जाएंगे until and unless all tables are in 2NF, ठीक है। ओके, और भैया एक ये भी कंडीशन है क्या, सपोज अभी ABCI ये जो है मेरे कॉमन रहेंगे एट्रीब्यूट, सही है। ओके तो इसका ये नहीं तो इसका सबसेट एज अ की रहना चाहिए, ऐसा कंडीशन है ना, क्योंकि ABCI का एक भी बनेगा ना अपना की। ABCI मतलब समझा नहीं मुझे। मतलब सपोज अभी फर्स्ट टाइम में जब स्प्लिट करूंगा मेजर टेबल को A2J हम्म वाले को, तो एक हम्म ABCI का टेबल बनेगा और हम्म एक बाकी इनका बनेगा। राइट। तो ABCI ये काइंड ऑफ मेरा कॉमन एट्रीब्यूट है जैसा एक्ट कर रहा था। कहाँ पे? नहीं ठीक है, समझा 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 ना? सम, हाँ समझा हाँ, समझा। सो क्या बोलने का मतलब क्या है कि ABCI विल नाउ ABCI मेरा एक टेबल बन गया, ठीक है। सो R1 के पास मेरी कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज चले जाएगी, AB determines C एंड A determines I, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज विल बिलोंग टू R2 नाउ, ठीक है। रेस्ट ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज विल बिलोंग टू R2 नाउ, R2। तो और बाकी उन के जो भी फंक्शनल फंक्शनल डिपेंडेंसी डिपेंडेंसीज से है, जो भी बनेगा वो टेबल बनाना है ना अलग। हाँ, wait, just let me complete. So BD determines EF, AD determines GH and H determines J. ये सारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, these will belong to R2 now. And because उनके LHS में A, B, D, H है, ठीक है, and the remaining attributes जो है E, F, ये सारे उस टेबल के पार्ट रहेंगे अभी, ओके फाइन। ओके। सो हेंस AB अभी दोनों में रहेगा कॉमन AB, and AB will serve as candidate key for first table. हम्म, Cool? ठीक है समझ गया। ठीक है।
अभी एक चीज है, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा स्प्लिटिंग, बट मार्क माय वर्ड्स, तुम 20 से 25 प्रॉब्लम जब सॉल्व कर लोगे, यू विल बी काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इन दिस। ठीक है, इट्स क्वाइट इजी, समझ में आ जाती है चीजें, बस अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा समझने में, बट प्रैक्टिस करते रहो, यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, नाउ गोइंग टू द लास्ट सेक्शन। सो हमारे पास अभी फाइनली जो टेबल्स आ चुके हैं, दीज आर R1 which says ABC, then R2 है which says BDEF, then we have R3 with R31 sorry which says HJ, and R32 which says ADG, yeah ADGH, okay, और R4 is AI। नाउ अभी हर एक में तुम चेक करो कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इज इट फॉलोइंग द BCNF कंस्ट्रेंट? सो यू विल गेट यस, इट इज फॉलोइंग, hence they are also in BCNF. ठीक है, this was our first example. Let's go to next page. दूसरे पेज पे जाते हैं, 46, पेज नंबर 46. So example we have R A B C D E. I've given the CK over there. AC है CK. So functional dependencies are A determines B determines C, and C determines G. ठीक है, so A determines B violates the 2NF condition, that is primary attribute, prime attribute derives non-prime attribute. Hence we'll split the table. So AB को एक टेबल में रख देंगे, but first we'll find A closure. तो A closure में क्या क्या आ रहा है? A B E आ रहा है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स जो है B E C D, ठीक है, उनको हम दूसरे टेबल में डाल देंगे। फाइन, B E C D को R2 में डाल देंगे, देन A B E को we'll put in this R1। ठीक है, अब एक चीज ये देखो कि B E C D को R2 में डालना उतना एफिशिएंट रहेगा क्या, या सिर्फ B C D अगर मैंने डाला तो चलेगा? बिकॉज रिमेनिंग जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उनके LHS में वी हैव जो E है, इट इज इन RHS। ठीक है, E जो है RHS में। सो अगर मैं उसको टेबल में रखूं या ना रखूं, उसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं वैसे भी। ठीक है, काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि LHS में जो चीज है उतना तो रहना ही चाहिए टेबल में। अगर LHS वाला एट्रीब्यूट ही अगर टेबल में नहीं रहेगा, सो हाउ कैन यू से दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी बिलोंग्स टू दैट टेबल? समझ रहे हो मेरी बात? अभी जैसे B डिटरमाइंस E, इसमें LHS में B है। सो इफ आई से कि B मेरा R2 को बिलोंग ही नहीं करता है, सॉरी सो B एज एन एट्रीब्यूट डज नॉट बिलोंग टू R2, मैंने अगर ये बोल दिया, सो हाउ यू कैन से दैट B डिटरमाइंस E बिलोंग्स टू R2? B डिटरमाइंस E, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, R2 को कैसे बिलोंग करेगा? अगर तुम फर्स्ट प्लेस में यही बोल रहे हो कि B तुम्हारा R2 को बिलोंग ही नहीं करता, समझे लॉजिकली? सो व्हाट यू कैन से इज, हाँ, तो अभी जब तुम नया टेबल बनाओगे, सो मेक श्योर कि जो LHS वाली चीजें हैं उतना तो आना ही चाहिए नए वाले टेबल में, दैट इज B एंड C, एंड देन वो वाले एट्रीब्यूट डालो RHS के विच आर नॉट कॉमन इन द फर्स्ट टेबल। ठीक है, अभी E क्योंकि कॉमन था, हेंस विल नॉट कंसीडर इट इन द सेकंड टेबल। तुम अगर कंसीडर करोगे भी तो तुम अपना रिडंडेंसी बढ़ाओगे बस, और कुछ भी नहीं। So in the second table we consider as B C D. First table we will consider as A B E. ठीक है, so A B E, so functional dependencies R1 के लिए will be A determines B and B determines C. Functional dependency for R2 will be B determines E and C determines D. तो ये रहेगी बेसिकली। So उसमें से भी हमारा जो ये है what we can say, yeah, so B determines E हमारे कुछ अभी what we can say काम का नहीं है यहाँ पे, because in R2 we don't have E now. Okay, so R1 will now have A determines B and B determines E, fine. So it will have CK as A, and then R2 का जो CK रहेगा वो as a C हम बोल सकते हैं, और because of C determines G, और this we can say now. ठीक है, अभी what do we have? So why didn't I consider BCD over here? भैया वहाँ पे B नहीं है, हाँ वही मैं देख रहा हूँ। So I have to consider B over here. हाँ, so what I say is कि ठीक है, मैं यहाँ पे BCD लिख दूंगा, R2 में I'll keep as BCD. अब the only functional dependency that I have is C determines D. Fine. So अभी because C determines D है, so I have functional dependency का set अभी C determines D, A की functional dependency है। RHS में I don't have B, hence B will be my compulsory attribute now. So what will be my CK? अब मेरा CK जो होगा वो भी BC बन जाएगा। ठीक है, not just C. So I'll have BC now. Fine. So अभी what I can say कि so इसमें common क्या है? B is common.
बट यहाँ पे अभी लॉसलेस वाला चीज हो गया कि यहाँ पे लॉसलेस की वो प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होगी. क्यों नहीं फॉलो होगी? बिकॉज बी इज नॉट एक्टिंग एज द सीके फॉर एनी ऑफ द टेबल. बट आई कैन से दैट माई टेबल इज इन 2NF. आई थिंक ये प्रॉब्लम में कुछ गड़बड़ है. ठीक है, मे बी फंक्शनल डिपेंडेंसीज का प्रॉब्लम है. All in 2NF now, R1 not in 3NF, so we'll split. ठीक है, R1 R2 R2 all in 3NF. Okay, fine. ठीक है, अब just skip this problem. कुछ तो इसमें गड़बड़ है in functional dependencies. We'll try solving next problem. We'll go to page number 47. वहाँ पे first problem is R ABC given is F functional dependencies का set AB determines C and C determines B. So ये हमने प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व किया है. तुम स्क्रीन पे भी देख सकते हो, शायद ये प्रॉब्लम होगा. हाँ, तो मेरी स्क्रीन पे सेकंड नंबर वाला प्रॉब्लम, तो उसका सीके वी डिटरमाइंड एज AB एंड AC, राइट? AB एंड AC, हाँ, AB एंड AC, फाइन. ठीक है, वो थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें. यहाँ पे बस सेकंड वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट में यू हैव B इंस्टेड ऑफ A, तो सीके विल बी AB एंड AC. सो फर्स्ट वाला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, सो नो पार्शियल डिपेंडेंसी. फिर सेकंड वाला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें भी नो पार्शियल डिपेंडेंसी, राइट? बिकॉज C इज प्राइम यहाँ पे, क्योंकि हर एट्रीब्यूट इज प्राइम एट्रीब्यूट. ठीक है, हर एट्रीब्यूट इज प्राइम एट्रीब्यूट. सो एक बड़ी चीज ये कि जब भी हर एट्रीब्यूट विल सर्व एज योर प्राइम एट्रीब्यूट. ठीक है, सो व्हाट वी कैन से कि कभी भी 2NF की कंडीशन जो है वो कभी भी ये वायलेट नहीं होगी, दैट इज प्राइम डिराइव नॉन प्राइम, बिकॉज तुम्हारा कोई एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एज ए नॉन प्राइम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ठीक है, सो हेंस जब भी ऐसी चीज रहेगी कि ईच एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, तो तुम्हारा कंपल्सरीली 2NF में रहना ही है. ओके, कंपल्सरीली 2NF में रहना ही है. ठीक है, सो अभी 2NF में है हमारा जो पेरेंट टेबल है वो. नाउ वी विल चेक फॉर 3NF. ठीक है, अब 3NF में भी रहेगा. क्यों? क्योंकि प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ही नहीं. सो नॉन प्राइम डिटरमाइन नॉन प्राइम, ऐसा कभी चीज आएगा ही नहीं. फाइन, नाउ वी विल चेक फॉर BCNF बेसिकली. सो व्हाट डू वी हैव इन BCNF कि हर फंक्शनल डिपेंडेंसी का LHS शुड बी सुपर की और कैंडिडेट की. सो AB डिटरमाइन C, देखो उसमें AB इज योर कैंडिडेट की फॉर टेबल. ठीक है, सो दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी इज वैलिड. उसके बाद C डिटरमाइंस B. C इज प्राइम एट्रीब्यूट, हेंस इट इज नॉट वैलिड. सो हम क्या करेंगे, C डिटरमाइंस B को अभी हमने एक नए टेबल में वील कीप इट. ठीक है, हम उसको अभी नए टेबल में डाल देंगे. एंड देन व्हाट विल पुट इन द पहले वाला टेबल, वी हैव टू पुट AC. ठीक है, क्यों AC रखना है? बिकॉज वी नीड टू हैव अ कॉमन एट्रीब्यूट, तभी वो लॉसलेस में जाएगा. तो हम AC रखेंगे इंस्टेड ऑफ AB नाउ. ठीक है, एंड देन व्हाट वी कैन से कि पहले वाला जो R1 जो है उसका कैंडिडेट की अभी AC खुद रहेगा, बिकॉज ऐसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है which says A determines C और C determines A with the parent table. ऐसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है ही नहीं हमारे पास. सो वील से वो टेबल है और वो टेबल के दोनों एट्रीब्यूट्स ही वहाँ का कैंडिडेट की है. एंड वी से दैट C determines B. सो इसमें कैंडिडेट की हमारा C रहेगा, एंड देन कॉमन एट्रीब्यूट जो है C है, एंड C acts as a कैंडिडेट की फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द टेबल्स. Hence R1 and R2 are now in BCNF. So page 48, another problem. Yeah. So CK जो दी हुई है वो है A, E, C, D and BC. उसके बाद फर्स्ट वाला जो है अभी LHS is सुपर की. हाँ, so अभी डायरेक्टली we'll go with the shortcut. ठीक है, अभी शॉर्टकट से डायरेक्ट जाते हैं हम 3NF का शॉर्टकट वाला. ठीक है, उसमें क्या है कि फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी योर LHS शुड बी कैंडिडेट की और सुपर की जो भी की रहना चाहिए, और योर RHS शुड बी तुम्हारा ये प्राइम एट्रीब्यूट रहना चाहिए. ठीक है, सो पहला वाला जो है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसमें देखो LHS में A है एंड A इज अ की. तो ठीक है, सो डायरेक्ट ये 3NF में है, मतलब दिस विल नॉट एक्ट एज अ बैरियर फॉर 3NF. एंड सेम विद CD डिटरमाइंस C, CD इज की, B डिटरमाइंस G. ठीक है, अब B डिटरमाइंस G में LHS इज नॉट SK. ठीक है, नाउ चेक फॉर RHS अभी तुम्हारा प्राइम एट्रीब्यूट है. ठीक है, RHS इज नाउ प्राइम एट्रीब्यूट, सो it will also not act as a barrier for 3NF.
बिकॉज वी हैड द कंडीशन देयर कि हमने पढ़ा है वो या तो LHS की या तो RHS प्राइम एट्रीब्यूट. अब D इज अ प्राइम एट्रीब्यूट कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज CD इज अ की, राइट, एंड देन E डिटरमाइंस A. ठीक है, सो RHS में वी हैव प्राइम एट्रीब्यूट A, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो LHS में यू हैव E विच इज अ कैंडिडेट की. ठीक है, नाउ वी विल चेक फॉर BCNF. सो अब तक हमारा 3NF में है, 3NF में है तो 2NF में है, 2NF में है तो 1NF भी है. ठीक है, सो 3NF में हम लोग है. नाउ वी विल चेक फॉर BCNF. सो फर्स्ट वाला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इट डज नॉट वायलेट BCNF. सेकंड वाला विल आल्सो नॉट वायलेट BCNF, बट थर्ड वाला विल वायलेट BCNF. सो व्हाट विल डू, विल कीप A B C D E. सो व्हाट वी कैन से, या तो BD वायलेट कर रहा है, सो BD को अलग रख दो. ठीक है, अब एक काम करो, उसका जो कैंडिडेट की है वो B है. ठीक है, उसको कॉमन ले लो दूसरे टेबल के साथ और बाकी के एट्रीब्यूट्स उसमें डाल दो. सो A B C E आर नाउ प्लेस्ड इन R2 और कॉमन वाला एट्रीब्यूट भी B भी है वहां पे. सो B विल सर्व एज द कैंडिडेट की फॉर R1, हेंस लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा. एंड सो A डिटरमाइंस BC एंड देन CD डिटरमाइंस E एंड नहीं, ये वाला तो हम सेकंड वाले टेबल में नहीं ले सकते. E डिटरमाइंस A. So what we can say, A determines BC and E determines A. We can have in R2 and R1 में B determines G हम लोग रख लेंगे. So R1, R2 is in BCNF, right? एक बार takeaways देख लो. BCNF has almost zero redundancy because it is the strictest rule. Relation with single attribute as primary key is always in 2NF. इसका मतलब क्या है? A relation which has a single attribute as primary key. ठीक है, अब इसका मतलब ऐसा है कि what we can say, अब because suppose I say A. ठीक है, A is your candidate key. ठीक है, so अभी because ये candidate key है और candidate key भी है and then it can also serve as prime attribute. ठीक है, A खुद एक candidate key है and it serves as prime attribute. So इससे can anyone come up with a solution कि इससे how we can say कि 2NF में directly हो जाएगा? If a table has a single attribute as a primary key, suppose A. थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, मिल जाएगा आंसर. फिर से रिपीट करो ना भैया क्वेश्चन एक बार. टेकअवेज वाला पेज ओपन है क्या तेरा? या ओपन है. हाँ, उस पे सेकंड पॉइंट एक बार रीड करना. एवरीवन टू रीड सेकंड पॉइंट ओवर देयर. हाँ, ऑब्वियस है. कैसे? एक्सप्लेन. इसमें एक्चुअली कैंडिडेट की जो है सिंगल एट्रीब्यूट है तो उसमें प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे ही नहीं ना. इट्स अ सिंगल. मतलब उसका सबसेट निकलेगा ही नहीं. अगर सिंगल ही एट्रीब्यूट है तो उसका और Exactly. सबसेट नहीं निकल सकता. सो देयर वोंट बी पार्शियल डिपेंडेंसी. हाँ, सो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है. बिकॉज यू हैव जस्ट अ सिंगल एट्रीब्यूट ओवर देयर, सो तुम्हारा काइंड ऑफ जो बोल सकते हैं प्राइम एट्रीब्यूट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. ठीक है, तो जब भी तुम्हारा A होगा LHS में, you will not count it as a prime attribute, you will say it is a key. So ये वाली तुम्हारी कंडीशन जो है ना, 2NF में हमारा बैरियर क्या था कि LHS में you have prime and RHS में you have नॉन प्राइम. सो अगर LHS में कभी प्राइम आ ही नहीं सकता तो ऐसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जहां पे 2NF वायलेट होगा. करेक्ट? जब भी तुम्हारा A अपीयर होगा LHS में, you will count it as a key, not a prime attribute. ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट, 3NF guarantees lossless decomposition and dependency preserving. नहीं, एंड नहीं है. सो 3NF guarantees lossless decomposition and may or may not be having dependency preserving. ठीक है. अभी नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी डाउट्स है क्या? Now you have to practice problems on your own. I have certain problems over here. यहाँ पे कुछ हाँ problems है. So shall we solve this और या तुम ये खुद से करने वाले हो? Because we have to start relational algebra today. भैया हम ये ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुए तो कल पूछेंगे. मतलब ऐसे चलेगा, कल doubts- 5:30 वाले doubts में सेशन में. पूछेंगे. हाँ, 5:30 वाले सेशन में यू कैन. ठीक है, ये है, उसके बाद ये भी है, ये वाला भी है, देन दिस वन. ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स है यहाँ पे. सो शायद गेट के प्रॉब्लम्स है, एक बार देखना. सो कमिंग ऑन टू रिलेशनल अलजेब्रा नाउ, पेज नंबर 49. So relational model is expressed or manipulated by a language based on certain principles and theories. These principles and guidelines are given in relational algebra and relational calculus. From placement point of view, relational algebra भी उतना important नहीं है, so relational calculus तो कभी कोई पूछेगा भी नहीं तुमसे. But relational algebra हमसे इसलिए पढ़ रहे हैं because these are the basics for writing a query. अगर तुम्हें ये पता है then you can like kind of तुम थोड़ा comfortable हो जाओगे with writing some queries.
ठीक है। सो ये क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, बेसिकली दीज आर थियरीज, ठीक है। थियरीज मतलब अभी जैसे व्हेनेवर वी डू समथिंग काइंड ऑफ रिसर्च वगैरह, कोई भी हम जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सो पहले हम उसका थियरी स्टडी करते हैं, कुछ गाइडलाइंस रखते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हम रखते हैं, ठीक है, एंड ओनली देन वी कैन डेवलप अ प्रोडक्ट। सो बेसिकली जो एसक्यूएल है तुम्हारा, माई एसक्यूएल या फिर ओरेकल, जो भी है तुम्हारी ये जो लैंग्वेज, जो आरडीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सब, सो दीज यूज एसक्यूएल एज अ लैंग्वेज, ठीक है, टू क्वेरी द डेटाबेस। लेकिन एसक्यूएल जो बिल्ट है वो इन दो स्टैंड्स के ऊपर बिल्ट है, ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। So SQL is designed by considering theories of RA and RC, and RA and RC are completely based on your set theory of mathematics. Okay, so hence to master SQL you need to grasp RA and RC. So RA is relational algebra is procedural language है, specifying each step what we want and how to get it. ये important point है, अगर कोई पूछेगा भी तो सिर्फ इतना difference पूछेगा, what is difference between RA and RC. So basically in relational algebra you need to know कि तुम्हें चाहिए क्या, what information, what data do you want from database, what you need to access, ठीक है, और तुम्हें ये भी पता रहना चाहिए कि how to access it, ठीक है, हमें उसे कैसे एक्सेस करना है, मतलब हमें ज्वाइन लगाना है, हमें कोरिलेटेड क्वेरी लिखना है, ऐसे, ठीक है, टू द बेस यू नीड टू नो कि क्या ऑपरेशन से मुझे एक्सेस करना है, ठीक है। बट इन रिलेशनल कैलकुलस इट इज नॉन प्रोसीजरल। बेसिकली व्हाट नॉन प्रोसीजरल मींस कि इट इज जस्ट डिक्लेरेटिव, जैसा पाइथन है ना, आई से इफ आई इन द गिवन लिस्ट, ठीक है, ये काइंड ऑफ ऐसा ग्रामर हो गया नॉन प्रोसीजरल। आई एम नॉट नोइंग कि वहां पे चीजें हो कैसी रही है, पॉइंटर्स कहाँ पे अलोकेटेड है, कौन किस चीज को रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। सो कंसीडर दिस एज तुम्हारा जो असेंबली लैंग्वेज है वो आरए पकड़ के चलो, वहां पे तुम्हें हर चीज का ध्यान रखना है, आरसी को तुम पाइथन पकड़ के चलो, ठीक है। आरसी यू नीड नॉट मेंशन कि यू जस्ट नीड टू मेंशन मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज ला के दो, ठीक है, तुम्हें ये नहीं बताना उसको ज्वाइन करो या क्या करो, बेसिकली, ठीक है। तो पेज नंबर 50, अभी रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ ऑपरेशंस है। So first we will study the fundamental operations or the basic operations which relational algebra offers. So these are the functionalities using which you derive complex functionalities. ठीक है, so join जो बोल सकते हो तुम, join is a complex functionality. Projection, ठीक है, selection, cross product, union, set difference, rename. These are your fundamental functionalities of relational algebra. So what you can say is projection. Projection मतलब एक column. सो मैंने अगर बोल दिया वो पाई का जो सिंबल है ना, मैंने लिख दिया पाई ए, इसका मतलब क्या होगा, टेबल में जो ए कॉलम है वो मुझे पूरा आउटपुट में दिखाओ, वो हो गया प्रोजेक्शन। सिलेक्शन इज सिलेक्शन मतलब कौन से टपल्स मुझे चाहिए, ठीक है। सो पुटिंग सम कंस्ट्रेंट, सपोज किसी मैंने बोल दिया कि वो रो वाला जो सिंबल है ना वो सिलेक्शन का, आई डोंट नो द सिंबल नेम एग्जैक्टली, वो जो भी है उसके नीचे आई सेड की ए इक्वल्स टू सी। इसका मतलब क्या हुआ, वो वाले टपल्स मुझे सिलेक्ट करके दो जहां पे ए और सी की वैल्यू इक्वल हो रही है, उसका मतलब ये। सो सिलेक्शन ऑफ सर्टेन टपल्स बेस्ड ऑन सम कंस्ट्रेंट्स, इट इज नोन एज सिलेक्शन। नाउ टेक अ नोट, सिलेक्शन एंड सिलेक्ट आर नॉट सेम। सिलेक्ट ऑफ MySQL, आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा एंड सिलेक्ट ऑफ दिस MySQL are not same, right? So cross product is exhaustive joining, no constraints. So वही एक एम्प्लॉय के साथ सारे नेम एसोसिएट कर दो, सो एम्प्लॉय आईडी 1 का नाम जय भी हो सकता है, सागर भी हो सकता है, या फिर दुनिया में जितने भी नेम से वो भी हो सकता है, फिर एम्प्लॉय नंबर 2 का भी वही। सो क्रॉस प्रोडक्ट है बेसिकली, वी हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। देन कमिंग ऑन टू यूनियन, यूनियन इज यूनियन ऑफ टू रिलेशंस, ठीक है, नॉट ऑफ टू टपल्स, इट इज यूनियन ऑफ टू रिलेशंस। सेट डिफरेंस इज सेट डिफरेंस ऑफ टू रिलेशंस। रीनेम इज रीनेमिंग अ टेबल सिंपली, ठीक है। सो सपोज मैंने अभी एक मैंने सिलेक्शन ऑपरेशन लगा के आई सिलेक्टेड सर्टेन टपल्स ऑफ माय टेबल, ठीक है। सो वो जो मेरा आउटपुट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा रिलेशनल अलजेब्रा की कोई भी एक क्वेरी का जो आउटपुट आएगा, इट इटसेल्फ विल बी अ रिलेशन। अब तुमने ये चीज देखा होगा, जब भी तुम MySQL में कुछ क्वेरी लिखते हो, अगर लिखा होगा तो जब भी तुम्हारा आउटपुट आएगा टेबल के फॉर्मेट में आता है। इसका मतलब क्या, MySQL क्वेरी का जो रिजल्ट है वो खुद भी एक टेबल होगा। सेम गोज विद रिलेशनल अलजेब्रा, वो क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा फॉलो करता है इसीलिए MySQL भी फॉलो करता है, ऐसा है वो। सो बिकॉज रिलेशनल अलजेब्रा का जो भी आउटपुट आएगा वो खुद एक टेबल ही होगा या खुद वो एक रिलेशन ही होगा। हेंस अगर मुझे आउटपुट को कुछ नाम देना है, आई वांट टू रीनेम दैट आउटपुट एज सपोज न्यू टेबल, सो आई कैन डू विद दैट रीनेम ऑपरेटर, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू RA एक्सप्रेशन या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन यू कैन से। सो बेसिकली इंटरसेक्शन है पहला,
हाउ डू यू टेक इंटरसेक्शन, ठीक है, याद रखो फंडामेंटल में हमारे पास सब्ट्रैक्शन सेट डिफरेंस था, इंटरसेक्शन नहीं था, सो इंटरसेक्शन इज डिराइवेबल फ्रॉम द सेट डिफरेंस वाली चीज। सो व्हाट डू वी डू, a माइनस बी, वेन डायग्राम से बना के देखना, ये वाली चीज सिंपल समझ में आ जाएगी इसका मतलब क्या है। सो a माइनस बी इज दोज टपल्स इन a which are not a part of b, मतलब a में से जो भी a और b के कॉमन टपल्स हैं वो सारे निकाल दो, टेबल a और टेबल b में जो कॉमन टपल्स हैं वो निकाल के a के जो बचे हुए टपल्स हैं वो मुझे दिखाओ, दिस इज a माइनस बी, ठीक है। सो a में से अभी पूरे a में से सिर्फ जो a के स्पेशली जो a के एलिमेंट्स अगर मैंने वो निकाल दिए, सो अगेन आई विल गेट द ओनली द कॉमन थिंग, ठीक है। सो ये मैंने डिराइव किया यूजिंग फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है। सो अभी कमिंग ऑन टू जॉइन, सो जॉइन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर आई हैव पुट सम कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो सिलेक्शन एंड क्रॉस प्रोडक्ट, सो दिस इज जॉइन, ओके। सो नीचे एक बार फर्स्ट पॉइंट सिलेक्शन स्लैश हॉरिजॉन्टल पार्टीशन, तो दिस इज उस पे तुम देखो कि वो जो है रो का जो सिंबल है वो, and d number equals to 4 and then bracket emp, so employee table, उसमें से जहां पे भी डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 4 है वो वाले सारे टपल सिलेक्ट करके, तो ये इसका आउटपुट रहेगा, यू कैन फिल्टर रोज बट नॉट कॉलम यूजिंग सिलेक्शन, ठीक है। अब इससे मेरे टपल्स तो आ जाएंगे लेकिन टपल्स की सारी वैल्यूज आ जाएगी, आई कैन नॉट मेंशन कि मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर कॉलम की ही वैल्यूज चाहिए, सो दैट वी विल डू विथ प्रोजेक्ट, ठीक है, हम वो फिर प्रोजेक्ट से करेंगे। नाउ मेक अ नोट, यू कैन हैव एंड एंड और इन सिलेक्शन एज वेल। अभी जैसे एक बार नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, पहले सिलेक्शन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब क्या, इफ आई से पहले आई से कि रो d इक्वल्स टू 4 एंड देन e, सो और सिलेक्ट ऑल दोस टपल वेयर d की वैल्यू इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब जो अब मेरा आउटपुट आएगा वो खुद एक रिलेशन होगा, मैं उसके ऊपर और एक कंडीशन और एक सिलेक्शन लगा दूंगा कि ये वाले जो नया वाला जो आउटपुट आया इसमें से भी और मुझे फिल्टर करना है वही वाले टपल्स जिसमें सैलरी इज ग्रेटर देन 10 की, ठीक है। सो अभी मैंने क्या किया, अब मैंने बाहर वाले कंस्ट्रेंट को अंदर डाल दिया और अंदर वाले को बाहर ले लिया, ठीक है। देन दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली, कि अगर मैंने पहले ऐसे वाले टपल सिलेक्ट कर लिए जहां पे सैलरी 10K से बड़ी है एंड देन आई सिलेक्ट दोस टपल्स जिनका डिपार्टमेंट 4 है, सो वोंट दिस टू बी इक्वल, दे वुड बी इक्वल, यू कैन थिंक, ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। Hence we say selection operator जो है it is commutative, it follows commutative property, ठीक है। So basically वहां पे तुम ये भी बोल सकते थे directly कि selection then d equals to 4 and d salary is greater than 10K, तो and भी लगा सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज 52 सिंटैक्स दिया हुआ है, सो सिलेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है नीचे यू विल राइट सिलेक्शन कंडीशन, तो जो एक बुलियन एक्सप्रेशन होगा एंड देन इन ब्रैकेट यू विल मेंशन ऑन व्हिच रिलेशन यू वांट टू अप्लाई दिस सिलेक्शन, ठीक है। सो बुलियन एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकता है, कंपेयर एन एट्रीब्यूट टू सम कांस्टेंट, जैसे हमने पीछे किया d इक्वल्स टू 4, एट्रीब्यूट मेरा d था मतलब डिपार्टमेंट ले लो, एंड देन इक्वल्स टू RHS में मेरा 4 था व्हिच वाज अ कांस्टेंट, ठीक है। और कंपेयर एट्रीब्यूट टू एट्रीब्यूट, व्हाट आई कैन से वेयर d इज ग्रेटर देन कुछ और कोई और एट्रीब्यूट की वैल्यू बोल दो, या फिर d इक्वल्स टू मैनेज व्हाट यू कैन से कोई और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऐसा बोल दो, हम एट्रीब्यूट कोई भी वैल्यू ले लो। सो प्रोजेक्ट, कमिंग ऑन टू प्रोजेक्ट, वी हैव pi a r, now a relation with whole a column, so this will give you a new relation which will just consider attribute a, which will just have only attribute a, so this is also known as vertical partitioning. Selection is known as horizontal partitioning, ठीक है, because वहां पे हम फिल्टरिंग लगा के हम स्पेसिफिक टपल्स ही सिलेक्ट करते हैं, हम हॉरिजॉन्टली काइंड ऑफ स्प्लिट करते हैं टेबल को, नॉट स्प्लिटिंग, बेसिकली यू कैन से पार्टीशनिंग, हॉरिजॉन्टली पार्टीशनिंग, एंड यहाँ पे तुम वर्टिकल पार्टीशनिंग बोल सकते हो। सो नीचे सिंटैक्स दिया है पाई, नीचे यू कैन राइट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड देन ब्रैकेट में यू हैव रिलेशन और एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी 53, सिंस वी आर डीलिंग विथ रिलेशंस हेंस आउटपुट ऑफ एनी ऑपरेशन नेवर प्रोड्यूसेस डुप्लीकेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। बट रिमेंबर एसक्यूएल में डुप्लीकेट्स अलाउड है टेबल में, ठीक है, याद रखना। सो नोट, सिलेक्शन इज कम्यूटेटिव, projection is not commutative. Why not projection is commutative? Anyone please?
अगर हमने कॉलम ए सिलेक्ट किया है, अगर ए बी सिलेक्ट किया और उससे फिर ए सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल है, बट अगर ए सिलेक्ट किया और फिर ए बी सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, एग्जैक्टली, ठीक, प्रिटी लॉजिकल। देन नोट इफ पाई a2 एंड देन ब्रैकेट के अंदर पाई a1 r and a2 is what you can say superset, improper superset of a1, then this equals to pi a2 r. Think anyone please, ये भी काइंड ऑफ लॉजिकली है, कोई भी बता दो। वही अगर हम ए बी पाई ए बी कर रहे हैं एंड देन पाई ए कर रहे हैं तो पाई ए होगा उसका। हाँ, सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं पहले इंटरनली सपोज मेरे पास एक टेबल में ए बी सी डी है, सो अंदर वाली अगर क्वेरी में देखूं तो a1 की जगह आई कीप ABC, सो वो क्या करेगा, वो पूरे टेबल में से सिर्फ 3 कॉलम्स की मुझे वैल्यूज दे देगा, ठीक है, सिर्फ ABC मुझे एक नया एक रिलेशन आ जाएगा मेरे पास, एंड देन मैं उससे बोल रहा हूँ कि A सिलेक्ट, उसमें से भी सिर्फ A सिलेक्ट करो। सो इनिशियली मुझे ABC की जगह सिर्फ A लिखना चाहिए था, ठीक है, मैंने ABC लिया ही क्यों, ABC मैंने प्रोजेक्ट किया ही क्यों, आई शुड हैव डायरेक्टली प्रोजेक्टेड A, ऐसा है। So if A2 is a improper subset of A1, then you can directly write कि pi A2 pi A1 R equals to pi A2 R, ठीक है। Page 54, select in SQL is equivalent to projection in array। अभी तुम्हें याद होगा select जो हम query लिखते हैं SQL में, तो select column name के सारे कॉमा डाल के लिखते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे select का काम उतना ही कि वही वाले कॉलम की वैल्यूज दिखाओ जिनको मैंने कॉमा डाल के मेंशन किया हुआ है। तो सिलेक्शन इन एसक्यूएल इज इक्विवेलेंट टू प्रोजेक्शन इन रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, सिलेक्ट और सिलेक्शन सेम है ऐसा नहीं है, बट यू नीड टू मेंशन सिलेक्ट डिस्टिंक्ट इन एसक्यूएल टू रिमूव डुप्लीकेट्स। और एक चीज, भले ही ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, बट सिलेक्ट इन एसक्यूएल अलाउज डुप्लीकेट्स टू अपीयर, बट सिलेक्शन प्रोजेक्शन इन आरए डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स टू अपीयर, बिकॉज आरए में जो भी आउटपुट आएगा वो रिलेशन रहेगा, एंड गोइंग विद सेट थ्योरी कंस्ट्रेंट्स वी डोंट हैव एनी डुप्लीकेट्स इन रिलेशन, इन एनी रिलेशन पॉसिबल वी डोंट हैव एनी डुप्लीकेट्स, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू रीनेम ऑपरेटर, रीनेम ऑपरेटर बहुत सिंपल है। सो रीनेम, नीचे न्यू नेम देना है मुझे, उसके बाद ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स। हाँ, यहाँ पे रिलेशन एज अ टेबल कंसिडर कर रहे हैं ना अपन? नहीं, टेबल नहीं है, रिलेशन मतलब एक्चुअल वाला रिलेशन, मैथमेटिक्स, जस्ट एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, वही ना? हाँ बोल सकते हो, ठीक है ठीक है। ठीक है। सो रो, नीचे हमने न्यू नेम प्रोवाइड करना है, सपोज जो मेरा आउटपुट आएगा उसको मुझे नाम देना है न्यू टेबल, सो न्यू नेम की जगह आई कीप न्यू टेबल, ठीक है, एंड देन ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स। अभी ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है, तो बेसिकली तुम्हें फंक्शन कॉल याद होगा, ठीक है, फंक्शन कॉल क्या बोलता है कि तुम एट्रीब्यूट्स को कुछ भी नाम दे दो, मैपिंग अकॉर्डिंगली होगी, फर्स्ट वाला जो होगा वो फर्स्ट को जाके मैप होगा, सेकंड वाला सेकंड को जाके मैप होगा। सो वैसा अगर मैंने ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स में लिख दिया x, y, z, सो जो भी मेरा आउटपुट आएगा ना, जो भी एक रिलेशन मेरा आउटपुट आएगा, सो उसके एट्रीब्यूट्स अगर 3 है, उनके नेम्स है, वो एट्रीब्यूट के नेम्स है a, b, c, ठीक है। सो जो अब मेरे जो रीनेम वाला टेबल होगा ना, वो a जो है वो x को मैप हो जाएगा, मतलब मेरे न्यू टेबल में वो a वाला रिजल्ट का a विल नाउ अपीयर एज x, मतलब उसका नेम चेंज हो जाएगा, a को हम लोग x से रिप्लेस कर देंगे, और b को हम लोग y से रिप्लेस कर देंगे, और c को हम लोग z से रिप्लेस कर देंगे। सो काइंड ऑफ अलाइसिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग इन एसक्यूएल अलाइसिंग, एज जो लगाते हैं ना एम्प्लॉय एज e, सो वैसा ही है काइंड ऑफ, ठीक है। नाउ 55 सेट ऑपरेशन, टेबल्स हैव टू बी चेक्ड फॉर टाइप और यूनियन कंपैटिबिलिटी। तो सबसे पहले अब सेट ऑपरेशंस कौन से हैं हमारे पास, दीज आर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, माइनस, ठीक है, ये वाले हैं सेट ऑपरेशंस 3। सो कभी भी सेट ऑपरेशन लगाने से पहले यू शुड बी टाइप कंपैटिबल। टाइप कंपैटिबल का मतलब क्या है, सेम डिग्री, पहले तो टेबल दोनों रिलेशंस का डिग्री सेम होना चाहिए। डिग्री का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अगर एक रिलेशन में 4 एट्रीब्यूट हैं एंड दूसरे रिलेशन में 5 एट्रीब्यूट्स हैं, यू कैन नॉट टेक यूनियन ऑफ दीज टू रिलेशंस, ठीक है। अब मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जब तुम लोग A यूनियन B बोल रहे हो, इट इज नॉट द यूनियन ऑफ व्हाट यू से, ये रिलेशन पूरे मतलब क्या बोल सकते हैं, ये रिलेशन का यूनियन नहीं, ये टपल्स का यूनियन है बेसिकली, ठीक है। सो ऐसा मत बोलो, मैंने अगर
कैपिटल आर, अंदर मैंने 4 एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी बोल दिए, एंड आई गो विथ अनदर टेबल एस, उसके एट्रीब्यूट्स आई से ई डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो जब मैं आर यूनियन एस करूंगा तो मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आएगा। नॉट, प्लीज प्लीज निकाल दो ये दिमाग से, ऐसा नहीं है। इट इज द यूनियन ऑफ टपल्स, ठीक है, यूनियन ऑफ नॉट योर रिलेशन कीमा या जो इंटेंशन का यूनियन नहीं है ये, ठीक है। सो ए शुड बी domain wise saying A should be in same domain as E, B should be in same domain as F, and then C should be in same domain as G, and D should be in same domain as H, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है करस्पॉन्डिंग डोमेन इक्विवेलेंस, इसका मतलब ये है, राइट। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते अगर तुम यूनियन ले रहे हो तो एक जगह एम्प्लॉय आईडी वाज एन इंटीजर एंड सेकंड टेबल में एम्प्लॉय आईडी इज अ वेरचर और कैरेक्टर, यू कांट से। तो डोमेन इक्विवेलेंट ये भी पॉइंट वैलिड होना चाहिए, एंड देन डिग्री भी सेम होनी चाहिए, करेक्ट। सो आर, अभी नीचे प्रॉपर्टीज है सेट ऑपरेशंस की, यू हैव आर यूनियन एस विच इज इक्विवेलेंट टू एस यूनियन आर, इक्वल है दोनों, एंड सेम आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू एस इंटरसेक्शन आर, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले लिखा कौन सा बाद में। एंड देन एसोसिएटिव भी है आर यूनियन एस यूनियन आर इक्वल्स टू आर यूनियन एस यूनियन आर, या तो फिर सेकंड वाले आर की जगह जे कर दो, राइट। So R union S union J equals to R union S पहले कर दो and then union with J. Same goes with intersection and then minus not commutes. ठीक है, pretty logical, set theory में पढ़ा हुआ है। So अगर मैंने बोल दिया कि A minus B, इसका मतलब क्या है कि A के जो specifically A को belong कर रहे हैं वही वाले चाहिए, common वाले नहीं चाहिए। If I say B minus A, it says specifically जो B को belong कर रहे हैं वही वाले चाहिए, common वाले नहीं चाहिए। So both are not same, right? एंड देन डुप्लीकेट्स एलिमिनेशन, ये सेट थ्योरी का पार्ट है। तो इसमें डुप्लीकेट क्यों नहीं आते हैं, बिकॉज सेट थ्योरी के कंस्ट्रेंट है कि इन अ सेट यू कांट हैव एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स, एग्जैक्ट सिमिलर टपल्स नहीं हो सकते हैं तुम्हारे पास। 56 कार्टेशियन प्रोडक्ट, यू हैव बाइनरी ऑपरेशन, देन रिलेशन मे और मे नॉट बी यूनियन कंपैटिबल। सो अब एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन यू टेक यूनियन यू नीड टू फॉलो टाइप कंपैटिबिलिटी, या इसको हम यूनियन कंपैटिबिलिटी भी बोलते हैं। But when you take a Cartesian product, there तब यूनियन कंपैटिबिलिटी फॉलो करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम एग्जॉस्टिव थिंक कर रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी को सारे पॉसिबल एम्प्लॉय नेम्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वी आर नॉट टेकिंग यूनियन, तो हमें ये नहीं देखना है कि दोनों का डोमेन सेम है कि नहीं, वी जस्ट हैव टू मेक काइंड ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में you need not check for union compatibility, ठीक है। and Cartesian product is a binary operation, binary operation मतलब at a time you need to consider two relations, ठीक है। अब वो रिलेशन पहला वाला जो है मतलब एक ही रिलेशन हो सकता है, तो कैसे, एक ही रिलेशन की 2 कॉपीज ले लो, उनके बीच में तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, या फिर दोनों अलग रिलेशन, दोनों यूनिक रिलेशन लो, बट इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, एक टाइम पे यू विल नीड 2 रिलेशंस, ठीक है। R क्रॉस हैज, अब इसके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स विल बी A1 प्लस A2 एंड नंबर ऑफ टपल्स जो रहेंगे वो N3 क्रॉस N4 रहेंगे। कैसे बोल सकते हैं, सो इफ सपोज मेरा R में मेरे पास नंबर ऑफ टपल्स थे N3 एंड S में मेरे नंबर ऑफ टपल्स थे N4, सो N3 क्रॉस N4 विल गिव द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टपल्स, ठीक है, वो मुझे देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ टपल्स इतने रहेंगे और टोटल एट्रीब्यूट जो रहेंगे वो एट्रीब्यूट्स इन A1 सपोज 5 एंड एट्रीब्यूट्स इन A2 सपोज 6, तो 11 एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे अभी मेरे न्यू टेबल में, न्यू रिलेशन में, सॉरी। कमिंग ऑन टू जॉइन, सो ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं दीज आर कॉम्प्लेक्स व्हाट यू कैन से ऑपरेशंस, ठीक है, ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा जो हमने डिराइव किए हैं बेसिक ऑपरेशन से। तो जॉइन को तुम लोग बोल सकते हो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन तुम्हारा ये सिलेक्शन। तो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर तुमने कुछ टपल्स, तुमने कुछ कंस्ट्रेंट लगा दिया तो तुम्हारा जॉइन बन गया। जैसे मैंने बोल दिया जॉइनिंग एम्प्लॉय टेबल एंड इन एसक्यूएल, ठीक है, जॉइनिंग एम्प्लॉय टेबल एंड देन डिपार्टमेंट टेबल बाय द कंडीशन दैट एम्प्लॉय का जो नहीं, हाँ, सो एम्प्लॉय आईडी, हाँ, तो एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है विच विल बी इक्वल टू डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट वाला आईडी, राइट, ये तुमने कंस्ट्रेंट लगाया। So apply cross product and then select specific rows that follow a specific condition. R मैंने नीचे representation दिया है, R वो symbol join का S and then A equals to D. First cross product, then selection based on the condition. अभी ये थोड़ा सा ठीक है important वाला है, पेज नंबर 57. You have natural join. Natural join का advantage क्या है? यहाँ पे तुम्हें specifically condition mention नहीं करनी है, ठीक है. It is an extension to join
where condition is automatically checked, that is no explicit mention. First, table should have common attribute with domain equivalence. अगर common attribute नहीं रहा तो तुम्हारा null relation आएगा output, ठीक है, null relation output आएगा, नहीं सॉरी null नहीं आएगा, just जो पहला वाला जैसा relation रहेगा ना as it is वही आएगा, ठीक है, because suppose tuple number 1 of first table will not be able to find some match in any tuples of the second relation, ठीक है. So जैसा पहला वाला जो relation है, मतलब R क्रॉस S में अगर कुछ R और S में अगर कुछ कॉमन नहीं है, like I'm talking about specific name एकदम कॉमन होना चाहिए एंड डोमेन भी सेम होना चाहिए. मतलब अगर एक टेबल में यू हैव केप्ट डिपार्टमेंट आईडी डी छोटा डी ई बड़ा, तो फिर सेकंड वाले टेबल में भी डी छोटा ई बड़ा ही होना चाहिए, वैसे का वैसा ही, और डोमेन भी सेम होना चाहिए, ठीक है. सो अगर नहीं होता है ऐसा, तो जो पहला वाला LHS लेफ्ट साइड वाले में जो तुमने लिखा है एम्प्लॉय टेबल एज इट इज वही आउटपुट आएगा, ठीक है. सो R स्टार S इक्वल्स टू R ABC PQ, ओके. सो ज्वाइनिंग के बाद जो तुम्हारा नया जो भी रिलेशन बनेगा, ठीक है, वो R में ही सब कुछ अपेंड होगा, राइट. तो तुम्हारा R मॉडिफाई हो जाएगा, R म्यूटेट हो जाएगा, तुम्हारा म्यूटेबिलिटी पढ़ा होगा तुमने डेटा स्ट्रक्चर्स में. सो कंपैरिजन डन ऑन बेसिस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट सेट. सो व्हाट यू कैन से, R स्टार S को इन टर्म्स ऑफ जॉइन आई कैन राइट R जॉइन S A इक्वल्स टू A, या तो R डॉट A इक्वल्स टू S डॉट A. नोट, नो कॉमन नेम एट्रीब्यूट, हेंस क्रॉस प्रोडक्ट. नहीं, ओके, फाइन फाइन फाइन. No common name attribute, star becomes cross product. ठीक है. So I went wrong, sorry for that. So अगर तुम्हारे कोई भी common name attributes नहीं है, so तुम्हारा जो output रहेगा वो cross product होगा. Pretty logical है, because यहाँ पे selection condition valid नहीं रहेगी. So जब भी हम बोलते हैं कि join, जब भी natural join evaluate होता है, तो पहले क्या होता है, first you go with cross product, then you have some selection operation. तो अगर यहाँ पे तुम्हारी सिलेक्शन ऑपरेशन वैलिड है ही नहीं, मतलब अगर कुछ कॉमन है ही नहीं दो रिलेशंस में, ठीक है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट अभी इवेल्युएट हुआ है वही तुम्हें आउटपुट दिखेगा, ठीक है. आई वाज सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर R और S में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी आउटपुट, ठीक है. मैंने पहले मिस्टेक गलती से बोला था कि R स्टार S में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो फिर तुम्हारा R ही आउटपुट आएगा, बट ऐसा नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट आउटपुट आएगा, ठीक है. Coming on to next 58, division. So division what we will do, अभी के लिए we'll say it's not that important. जिसको पढ़ना है वो एक बार वहां से पढ़ लो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और इतनी जरूरत भी नहीं है, ठीक है. अगर तुम लोग गेट के लिए अपीयर हो रहे हो, then you may think of studying it, but placement point of view please note. Page number 59, it's for division 2. number 59, ठीक है. 60 का भी डिवीजन वाला ही है. Division is quite complex, huh? So 61 aggregate functions. So sum, AVG, max and min and count. So ये सारे aggregate functions हैं. उसके बाद we have outer join, representation देख लो, left outer join का, right outer join का and full outer join का. So what is left outer join? Basically left outer join is कि मेरे पास दो tables हैं, suppose employee and then I have project, ठीक है. अब मैंने क्या बोल दिया कि लेफ्ट आउटर जॉइन में मतलब मैं हर एक टपल लूंगा लेफ्ट वाले टेबल का, I'll ट्राई मैपिंग इट विद राइट वाला टेबल. अगर मुझे कोई ऐसा टपल लेफ्ट वाले टेबल के टपल का कोई ऐसा मैपिंग नहीं मिलता राइट में, उसके बाद भी मैपिंग नहीं मिलने के बाद भी, लाइक सिलेक्शन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने के बाद भी, I'll still keep that tuple in my output, but because उसके लिए सेकेंड टेबल की कुछ वैल्यूज अप्लाइड नहीं है, I will keep them as null. Suppose there exists an employee जिसके नाम पे कोई which is not working any under project, तो उसका PID में equals to null है. So null does not have a mapping, PID equals to null does not have a mapping in the other project वाला table. So what I'll do, मैं वो वाले टपल को भी I'll include in my final relation, और जो सारी वैल्यूज अप्लाइड नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम एंड देन व्हाट यू कैन से प्रोजेक्ट आवर्स, प्रोजेक्ट आईडी, उन सबको आई डायरेक्टली पुट एज नल. सो दिस इज माय लेफ्ट आउटर जॉइन, ठीक है. अब ये मेरा कहाँ पे काम आ सकता है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया वैसा ही. तो सपोज आई वांट टू इंक्लूड, मुझे वो वाले एम्प्लॉय एक्सक्लूड नहीं करने हैं जिनके नाम पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, बट जिनके नाम पे प्रोजेक्ट है मुझे उनके प्रोजेक्ट भी मेंशन करने हैं, बट जिनके नाम पे प्रोजेक्ट नहीं, आई डोंट वांट टू एक्सक्लूड देम, आई वांट टू स्टिल कीप देम.
सो वहां पे तुम्हारा लेफ्ट आउटर जॉइन काम आ सकता है। सेम गोज विथ राइट आउटर जॉइन, पहले अपन ने एम्प्लॉय को लेफ्ट में रखा, अभी तुम एम्प्लॉय को राइट में डाल दो। सो जो भी राइट वाले टेबल के लिए जो भी टपल्स इन राइट वाले टेबल आर नॉट अप्लाइड इन लेफ्ट वाला मैपिंग, लेफ्ट वाले टेबल का मैपिंग, उनको एज इट इज वैसे ही रखना है, और जो वैल्यूज अप्लाइड नहीं वहां पे नल डाल दो, ठीक है। एंड फुल आउटर जॉइन क्या होगा, अभी फुल आउटर जॉइन जिनका मैपिंग पॉसिबल है वो आ जाएंगे सब, और लेफ्ट वाले टपल्स में जिनका मैपिंग पॉसिबल नहीं है वो भी रखने, एंड राइट वाले टेबल में जिनका मैपिंग पॉसिबल नहीं है वो भी रखने। नाउ सपोज इन लेफ्ट यू हैव एम्प्लॉय, इन राइट यू हैव प्रोजेक्ट। अब सपोज ऐसे कोई एम्प्लॉयज हैं जिनके नाम पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, सो उन्हें भी रखना है, जो वैल्यूज अप्लाइड नहीं उनको नल रखना है। अभी सपोज कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करता है, सो वो वाले प्रोजेक्ट भी रखने हैं, और उनके सामने एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू नल रखने, बिकॉज नो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर देम। ओके, ठीक है, ये था फुल आउटर जॉइन। एंड देन सम एवरेज, ये सब तो अंडरस्टूड है, मैक्स मिन काउंट दीज आर ऑल अंडरस्टूड, ठीक है। हम वैसे भी क्वेरीज देखने ही वाले हैं एसक्यूएल में, so don't worry. So note, cross product is not same as full outer join, ठीक है। A very special note, cross product is not same as full outer join, ठीक है। You are well versed to understand that. And then 62 page number, एक थोड़ा सा what we have, अगर I'm like performing some operations on two relations, then what is the minimum number of tuples and maximum number of tuples, ठीक है। So when we take cross product, what is the minimum number of tuples that we have? पूरे हो जाएंगे कंबाइन, तो पहले वाले के जो जितने हैं टपल्स इनटू दूसरे वाले के टपल्स, तो मिनिमम भी उतना आएगा, मैक्सिमम भी उतना आएगा। व्हेन आई टेक सिंपल वाला जॉइन, मतलब मैं जब कंडीशन मेंशन करूंगा, सो इन द वर्स्ट केस व्हाट कैन आई हैव, एक भी टपल के लिए कंडीशन मैच नहीं होगा, सो मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स विल बी 0। एंड देन इन मैक्सिमम व्हाट कैन आई हैव कि m into n, व्हाट कैन आई से कि एक टपल जो है और लेफ्ट साइड वाले टेबल का, उसने वो सारे टपल्स ऑफ सेकंड टेबल उसमें मैच कर पा रहा है, वो मतलब मैपिंग है सारे टपल्स के लिए उसके पास इन राइट वाले टेबल में। एंड सिमिलरली ऐसे हर टपल ऑफ LHS इज मैप टू ऑल एवरी अदर टपल ऑफ RHS, ठीक है। तो m into n, व्हेन आई से फुल आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन में कम से कम मेरे पास LHS के तो सारे कंटेंट आने ही वाले हैं, ठीक है, कम से कम। इन द वर्स्ट केस इफ आई डोंट हैव एनी मैपिंग ऑफ एनी LHS वाले टेबल का टपल इन RHS, देन वो LHS वाले टेबल में जितने हैं उतने तो आएंगे ही। एंड इन द मैक्सिमम केस वही जो ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन है गेव, सेम एवरी टपल ऑफ LHS हैज मैपिंग टू एवरी अदर टपल ऑफ RHS, ठीक है। सो m into n, देन गो विथ राइट आउटर जॉइन, इसको उल्टा कर दो तो वैसा ही, सो min will be n and max will be mn. Now coming on to full outer join, anyone please try with this, it's kind of tricky. Anyone please? इसमें दोनों में जो भी कॉमन है वो आएंगे, प्लस जो m में नहीं है वो भी आएंगे और n में नहीं है वो भी आएंगे ना। जो m में नहीं है मतलब जो कॉमन नहीं है वो भी, दो टेबल्स है उनमें कॉमन मतलब बोलने का वो कंडीशन जो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आएंगे, फिर जो m में नहीं कर रहे वो भी आ रहे हैं बट बाकी के वैल्यूज नल, और जो n में सेटिस्फाई नहीं कर रहे वो भी आ रहे हैं कंसीडरिंग अदर वैल्यूज नल। सो ऐसे मैक्स ऑफ m, n कैसे बना? मेरा क्वेश्चन वो तो ऐसा m प्लस n में होगा। मिन वाला बस समझने वाला है, मैक्स तो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो मिन वाले में इक्वल्स टू मैक्स ऑफ m, n कैसे आ रहा है? गाइस ये सारा जो लॉजिक है ना, यही तुम्हें SQL के कोरिलेटेड क्वेरीज में काम आएगा। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स, तो वहां पे तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी कि कहाँ पे कितने टपल्स आएंगे, कौन सा टपल किसके साथ मैप होगा, लाइक while joining, while writing correlated queries. So think on this, ठीक है, सोच के देखो, नहीं हुआ तो कल मैं बता देता हूँ इसका रीजन, वहाँ पे रीजन लिखा भी है, अगर पढ़ के समझ रहा है तो इट्स ओके, नहीं तो सोच के देखो थोड़ा, फाइन। चलो विल मूव, कल बताता हूँ इसका रीजन, सोच लो आज। सो नोट, प्रोजेक्शन, देन सिलेक्शन, देन यूनियन, रीनेम, सेट डिफरेंट मतलब माइनस,
एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर कंप्लीट सेट, एंड देन जो नीचे दिए हैं दीज आर द डिराइव्ड सेट या फिर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस बोल सकते हो तुम। अभी पेज नंबर 63 व्हाट डू यू हैव ओवर देयर, यूनियन में मिनिमम जो आएंगे, ठीक है, इट विल बी द मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n, ये अंडरस्टूड है। यूनियन में सपोज समझ आई गया टेक, ये क्या हुआ? इनर जॉइन वाला समझ गया। हाँ बता दे, फुल आउटर सपोज जॉइन नॉट इनर जॉइन। या फुल आउटर जॉइन, सॉरी। तो उसमें कंसिडर किया कि एक एम है, एम टपल्स वाला है और एक एन टपल्स वाला है। सो लेट्स कंसिडर एम टपल्स वाला भी मैक्सिमम है, मतलब ज्यादा है, उसके टपल ज्यादा है, एम एम इज ग्रेटर देन एन। तो मिनिमम कब आएगा? जब एन के सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं और एन के सब सेटिस्फाई कर रहे हैं और एम के कुछ फिर रह रहे हैं। तो एन के सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसका उतना ही पार्ट आएगा और एम के जितने बचे उतना आएगा। तो मैक्सिमम कितना हुआ? एम में होगा, मतलब Right. जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो एम में रहेगा साइज, तो उसके हिसाब से। राइट, ठीक है। सो व्हाट डिड ही से कि मेरे पास दो रिलेशंस है, एक में मैंने नंबर ऑफ टपल्स बोल दिए m, दूसरे में मैंने नंबर ऑफ टपल्स बोल दिए n। नाउ आई विल कंसीडर कि जिसमें नंबर ऑफ टपल्स m है, सो m इज ग्रेटर देन n, बेसिकली आई विल कंसीडर दिस। एंड जो m जिसमें m टपल्स है वो टपल का 1-to-1 मैपिंग है इन विथ दूसरा वाला रिलेशन, ठीक है। मतलब m जहाँ पे m टपल्स है उसमें से n टपल्स का 1-to-1 मैपिंग है विथ ईच अदर टपल इन द सेकेंड टेबल, इन सेकेंड रिलेशन, ठीक है। सो इसमें जो बच गए वो होंगे m-n। सो n तो पहले मैपिंग के थ्रू आ जाएंगे 1-to-1 रिलेशन, और जो बच गए नाउ ऑल दीज विल अकाउंट टू m, ठीक है, व्हेन m इज ग्रेटर देन n। हेंस अगर n m से बड़ा है तो क्या होगा? तो n आएगा आंसर, अगर m n से बड़ा है तो m आएगा, हेंस मैक्स ऑफ m कॉमा n, ठीक है। पेज 63 यू हैव यूनियन। तो यूनियन में व्हाट यू कैन हैव, मिनिमम जो रहेंगे वो मैक्स ऑफ m कॉमा n रहेंगे। सो वही है जैसे अभी तुमने दो सेट का भी यूनियन लिया है सपोज, ठीक है। तो यू हैव सपोज 10 एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट एंड 6 एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। तो वैसे ही कंसीडर कर लो कि जो 6 एलिमेंट्स है दीज आर ऑलरेडी कंटेंट विद इन द 10 एलिमेंट्स, ठीक है। इन द वर्स्ट केस आई एम टॉकिंग, इन द वर्स्ट केस, तब मिनिमम वर्स्ट केस में ही आएगा। सो 6 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी कंटेंट विद इन दोस 10 एलिमेंट्स। तो जब तुम इसका यूनियन लोगे तो मैक्स ऑफ m कॉमा n मतलब 10 वैल्यू आएगा यहाँ पे। एंड व्हेन यू टेक मैक्सिमम, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ऐसा बोल दो, ठीक है। कुछ भी समझो, एक जगह था 1 2 3 4 5, दूसरी जगह था 7 और 8। तो जब यूनियन लोगे तो आंसर विल बी 5 + 2 7 नंबर ऑफ टपल्स, ठीक है। यू गो विथ इंटरसेक्शन, मिनिमम तुम कितना बोल सकते हो? 0, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन 0 आएगा। मैक्सिमम कितना बोल सकते हो? मिनिमम ऑफ m कॉमा n। एग्जाम्पल ले लो 1 to 10 एक में ले लो एंड देन 1 to 5 दूसरे में ले लो, ठीक है। सो कॉमन क्या है दोनों के बीच में? 1 to 5। सो मिनिमम ऑफ m कॉमा n, मैक्स इतना आएगा। एंड देन सेट डिफरेंस में मिनिमम कितना आएगा? मैंने r माइनस एस कंसिडर किया एंड r के नंबर ऑफ टपल्स आर m, ठीक है। सो मिनिमम कितना आएगा? अगर दोनों के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है तो 0, नहीं सॉरी, अगर 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 r इज कंप्लीटली कंटेन्ड विद इन s, सपोज आई से r में 1 to 10 है एंड s में 1 to 20 है, ठीक है। सो r वाले स्पेसिफिक मुझे होना, सो ऐसा कोई भी नहीं है बिकॉज r वाले सारे आर कंटेन्ड विद इन s, ठीक है। सो मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम अगर मैंने बोल दिया अगर उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन 0 है, तो r के सारे आ जाएंगे बिकॉज वो सारे आर स्पेसिफिक टू r, करेक्ट। सो वी आर डन विथ रिलेशनल अलजेब्रा 2, ठीक है। अब हम इसके थोड़े प्रॉब्लम्स देखते हैं यहाँ पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट इज रिप्लेसिंग द LHS एक्सप्रेशन बाय RHS एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट? R1 and R2 are relations, C1 and C2 are selection conditions, A1 A2 are attributes of R1. Anyone please?
ऑप्शन ए। इट शुड बी इनकरेक्ट बिकॉज कंडीशन ही बदल। सिर्फ ऑप्शन ए है। अच्छा, लेट मी मेक श्योर उसमें टाइपो नहीं है कुछ। भैया वो टाइपो तो नहीं हो सकता क्योंकि सेम ही हो जाएगा फिर। C1 C1 ही रहा C1। Hello. So we'll start solving the questions now for normalization as requested. Give me a minute. So here we are. So the first question says, consider the following relational schemas for the schemes for library database. So you're given book, you are given title, author, catalog number, publisher, year, price, collection, title, author, catalog number. Within the following functional dependencies, title, author determines catalog number. Catalog number determines title, author, publisher, year, publisher, title, year determines price. Assume author title is the key for both the schemas. Which of the following statement is true? So what then? Author and title. Okay, so what can we say about this one? First functional dependency, title, author gives catalog number. So key derives a non-prime attribute basically. Okay, so what we can say, this does not violate the required condition for 2NF. Okay, and this also does not violate the required condition for 3NF. Fine. Then goes second one, catalog number determines title, author, publisher, year. So what you can do, catalog number determines title, catalog number determines author. As a split करके you can write. Fine. So catalog number is itself a non-prime attribute, and catalog number can determine publisher, which is a non-prime itself. Hence, we say that this acts as a barrier for 3NF. Hence, what we can say that catalog number and this functional dependency is directed for the book. Fine, because title, author, publisher, and year are and catalog number. These all are attributes for the book functional the book table, right? So what you can say that book is not in 3NF. And then what we can say that the second functional dependency, catalog number determines title, author, publisher, year. This does not violate the required condition for 2NF because LHS में तुम्हारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है. 2NF कब वायलेट होता है? जब LHS में प्राइम हो और RHS में नॉन प्राइम हो. फाइन.
So we'll go to third one now. Publisher, title, year determines price. Okay, so what you can say, publisher, title or year. So this is also for the book table, since title publisher wali cheez is not in collection, hence this is for book table. So finally तुम लोग क्या बोल सकते हो कि जो collection है, collection के लिए जो भी functional dependency है वो ना तो 2NF को violate कर रहे हैं ना तो 3NF को. What you can say, collection is in 3NF and second functional dependency violates the book to be in 3NF, but it does not violate book to be in 2NF. Hence you can say the book is in 2NF and collection is in 3NF. So option C. Any doubts? Any doubts, anyone? भैया 2 मिनट. ठीक है, take your time. भैया वो ऑथर टाइटल इज द की बोला है, मतलब वो कंबाइंड एज अ की बोला है ना. हाँ हाँ, वो combined as a key because of set के अंदर लिखा हुआ है. ओके. और अगर वो थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी देखेंगे उसमें पब्लिशर, टाइटल, ईयर ये तीनों कंसिडर हुए, इसलिए एक्सप्लिसिटली ऐसा नहीं बोल सकते ना कि वो प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम को ये कर रहा है. नहीं, यहाँ वहां पे तुम बोलोगे नॉन प्राइम डिराइव नॉन प्राइम, बिकॉज LHS में जो भी चीज होती है ना उसको तुम पूरा कंपोजिट करके कंसीडर करते हो. यू कांट स्प्लिट LHS एवर. ओके ओके. ठीक है, तो अगर तुमने एक जगह पे बोल दिया ना कि एक स्कूल के अंदर नो 2 किड्स कैन हैव सेम एग्जैक्ट सेम नेम, मतलब उनका F नेम सेम हुआ चलेगा, L नेम भी सेम हुआ तो नहीं चलेगा. सो बेसिकली तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मैं F नेम को अलग से देखूं, L नेम को अलग से देखूं. ठीक है, तुम्हें वहां पे दोनों को साथ में ही देखना पड़ेगा. समझ रहा है मतलब? So your F name and L name का combination will determine everything else, not just F name को तुम अलग से देख लो, L name को अलग से. ठीक है, तो जब भी LHS में कोई चीज होगी you can't split it. RHS में फिर तुम अभी ऐसा बोल सकते हो F name, L name can determine name, your street name, address, phone number, और तुम अलग से बोल सकते हो F name L name can determine street, F name L name can determine address, बोल सकते हो. ठीक है भैया एक इसमें से देखा जाए तो जो फर्स्ट वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी है वही एक्चुअली कलेक्शन के लिए होगा, बाकी दो तो नहीं हो सकते क्योंकि उसमें पब्लिशर एंड प्राइस वगैरह वो भी आ रहा है कि बाकी के दो आर नॉट वैलिड फॉर कलेक्शन. तो कलेक्शन BCM NF में भी है ना, देखा जाए तो उसका की यूज हो रहा है. तो बट यहाँ पे हमारे पास वैसा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए आई जस्ट सेड. ओके ओके देन ठीक है, समझ गया. हाँ, BCNF में है. ठीक है, कलेक्शन इज इन BCNF एज वेल. भैया जैसे LHS को स्प्लिट नहीं कर सकते वैसे RHS को मतलब स्प्लिट कर सकते क्या? देखा मैंने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कैसे दिया. ठीक है, आई अगेन गाइड यू. सो सपोज एक स्कूल है, देयर किड्स विद सेम नेम आर नॉट अलाउड, एग्जैक्टली सेम नेम, F नेम L नेम दोनों सेम नहीं अलाउड है. सो व्हाट आई कैन से, अगर मैंने बोल दिया सूरज इंगोले, अगर मैंने बोल दिया, ठीक है, सो अ पर्टिकुलर किड विल स्टैंड अप. ठीक है, और वो अपना नाम बताए, वो अपना एड्रेस बता देगा, वो अपना फोन नंबर बता देगा. ठीक है, सो अ पर्टिकुलर व्हाट आई कैन से F नेम L नेम का जो कंपोजिशन है, इट कैन गिव मी एड्रेस, इट कैन गिव मी फोन नंबर, इट कैन गिव मी ईमेल. अगर मुझे तीनों साथ में चाहिए तो वो भी देगा, तीनों अलग अलग भी चाहिए तो भी मुझे देगा वो. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि F नेम L नेम कैन डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ ईमेल, फोन नंबर एंड व्हाटसोएवर एड्रेस. ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट. बट F नेम L नेम का composition will determine each and everything. I cannot say F name will determine address and L name will determine phone number. ये मैं नहीं बोल सकता, right? So logically speaking, I cannot split LHS, but I can split RHS. और हमने ये चीज पहले भी एनकाउंटर की, कहाँ पे, where we saw how to minimize the functional dependency set. याद है उसका फर्स्ट रूल? फर्स्ट वी स्प्लिट एवरी पूरा RHS को हम लोग स्प्लिट करके सिंगल एट्रीब्यूट वी कीप ऑन RHS साइड फॉर ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी. याद होगा तो होगा. बट अभी तुम बोलोगे कि LHS में भी ऑल्सो चेक, बट दैट वाज नॉट स्प्लिटिंग. ठीक है, वो हम लोग चेक कर रहे थे कि इन द एब्सेंस, अगर मेरे पास LHS में एट्रीब्यूट सेट है 4 लेंथ का, सो आई वाज चेकिंग कि इन एब्सेंस ऑफ A1 कैन जस्ट A2 A3 A4 यूज्ड फॉर एज अ कंप्लीट डिटर्मिनेंट,
कैन जस्ट A1 A3 A4 कैन बी यूज्ड एज अ डिटर्मिनेंट, ताकि मैं ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को कट करके एक न्यू मिनिमल वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखूं. वी वर नॉट स्प्लिटिंग ओवर दैट, ठीक है, वी वर ट्राइंग कॉम्बिनेशंस टू रिड्यूस द फंक्शनल डिपेंडेंसीज. करेक्ट? हाँ correct, हाँ ओके हाँ ठीक है भैया. ठीक है. एनी एल्स इन दिस क्वेश्चन? समझ गया भाई. So this one, consider the schema R, ST, UV and dependencies as ST, TU, UV and VS. Fine. So what you can say? सबसे पहली चीज that you can observe is what? Each and every attribute is a prime attribute. नहीं, sorry, we cannot say that because हमने अब तक CK नहीं निकाला है, ठीक है. तो CK के जो पार्ट रहेंगे वो प्राइम एट्रीब्यूट होंगे. ओके, सो पहले हम लोग CK निकाल लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है. सो S भी मेरा CK रहेगा, T भी CK रहेगा, U भी CK रहेगा और V भी CK रहेगा. क्यों? S डिटरमाइंस C, T डिटरमाइंस U. सो S के क्लोजर में आ जाएगा T, U, V और S खुद भी, एंड देन T के भी क्लोजर में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज द साइकिल. ठीक है, साइकिल दिख रही होगी तुम्हें, मतलब फर्स्ट वाला सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फन, तो साइकिल है. सो हाँ तो मतलब सुपर की ही, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, सुपर की ही कैंडिडेट. नहीं, नॉट सुपर की. सुपर की तुम्हारा STU भी हो सकता है, सिर्फ S भी हो सकता है, सिर्फ T भी, सिर्फ STU भी हो सकता है, TUV भी. तुम कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, वो सुपर की ही होगा इस टेबल के लिए. ठीक है. सो 2 to the power 4 सुपर कीज बनेंगे इस टेबल के लिए. सॉरी, 2 to the power 4 minus 1 मतलब 15 सुपर कीज बनेंगे इस टेबल के लिए. एंड देन व्हाट यू कैन से, S क्लोजर निकाला, you will get complete set of attributes. Same goes with T, same goes with U and same goes with V. So 4 कैंडिडेट कीज हैं यहाँ पे, एंड each candidate, each attribute is itself a candidate key. ठीक है. सो तुम क्या बोल सकते हो यहाँ पे, अब तुम्हारी जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, बिकॉज ईच एट्रीब्यूट इज अ की इटसेल्फ, तो जो भी तुम्हारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें तुम्हारा प्राइम डायरेक्ट नॉन प्राइम या नॉन प्राइम डायरेक्ट नॉन प्राइम ऐसा कुछ आएगा ही नहीं. तो दोनों इसमें होंगे, 2NF 3NF दोनों में होंगे. दोनों में होंगे, लेकिन अभी हमने ये सिर्फ पेरेंट टेबल की बात की. अभी क्वेश्चन आगे देखते हैं. लेट R equals to R1 and R2 be a decomposition such that R1 intersection R2 equals to 5. इसका मतलब क्या है? They have nothing in common, right? So the decomposition is in 2NF but not 3NF, 3NF but not in 2NF, and both 2NF and 3NF. फोर्थ में होगा क्या? नहीं, एक मिनट. आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट डिकम्पोजिशन, मतलब R1 and R2 दोनों के लिए, राइट? मतलब इन 2NF बट नॉट 3NF होगा ना? Why so? Explain. क्योंकि मतलब if they don't have anything in common and then all are candidate keys, तो इंडिविजुअली तो मतलब पार्शियल डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो 2NF में होगा वो, एंड 3NF में नहीं होगा क्योंकि लॉसी डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है. एंड 3NF, See, you are going wrong. You are saying because it is lossy, hence it is not in 3NF. गलत है. हाँ, क्योंकि 3NF guarantees lossless decomposition. You cannot say कि अगर कुछ अभी मैंने बोल दिया, सपोज 2NF में भी लॉसलेस हो रहा है, ठीक है. If I solve a problem 2NF का, ठीक है, उसमें भी मतलब लॉसलेस मेरे पास आंसर आ रहा है, ठीक है. सो आई कैनॉट से कि वो 3NF में था पहले से ही. सो यू कैनॉट से अगर लॉसलेस है तो 3NF है, बट यू कैन से अगर 3NF है तो लॉसलेस है, ये तुम बोल सकते हो. अच्छा ओके. हाँ भैया, बट 2NF तो पक्का है क्योंकि दे आर, क्योंकि सारे जो एट्रीब्यूट्स है वो कैंडिडेट कीज ही है. अच्छा, तुम्हें ये दिया हुआ है कि R1 के अंदर which attributes I am taking and R2 के अंदर which attributes I am taking? इसमें दोनों नहीं. अलग अलग पड़ेंगे, लाइक ST एंड UV दोनों में कॉमन है, तो ले कुछ लो, कॉमन दो एक जगह ले लो, दो दूसरी जगह ले लो, वैसा कर लेंगे. तो अगर सपोज ST एंड UV लिया तो दो ही फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब एक का एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा. अगर सपोज ने ST एंड UV ले लिया तो ST के लिए मेरा S T को डिराइव कर पा रहा है, यही होगा. एंड सेम UV कर लिया तो U V को डिटरमाइन कर रहा है, ये होगा फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो इसमें S ये कैंडिडेट की हो गया और UV में U कैंडिडेट की हो गया, और एक ही है तो इसमें दूसरा प्राइम नॉन प्राइम का कुछ हो ही नहीं रहा ना, देखा जाए तो. तो दोनों में आएगा 2NF 3NF. 2NF 3NF दोनों आएगा ना? आएगा, राइट. ठीक है.
सो बेसिक क्रक्स वाज कि तुम्हें कंसीडर करना, पहले तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि मैं अगर कुछ भी कॉम्बिनेशन लो, नाउ सपोज आई टेक एस इन अ सिंगल टेबल एंड आई टेक टी यू वी इन अ डिफरेंट टेबल, ठीक है, समझा? तुम कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन, हमेशा आंसर विल बी इन 2NF एंड 3NF बिकॉज ऑफ द साइकिल फॉलोड ओवर हियर. अब सपोज मैंने सिर्फ s को आई केप्ट इन R1 एंड R2 में आई केप्ट टी यू वी, तो all those functional dependencies applicable over there would be t determines u and u determines v. वहां पे भी your t will be candidate key and u what you can say, हाँ t candidate key रहेगा. उसके बाद नहीं, वहां पे तुम्हारा 3NF नहीं आ पाएगा बिकॉज हाँ ठीक है आ जाएगा, ठीक है 3NF आ जाएगा. कैसे आएगा? बिकॉज t determines u and u determines v and then v determines s और फिर s determines t. तो जब तुम क्या बोलते हो एग्जॉस्टिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज सेट बना के न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिराइव करोगे ना, सो टी विल डिटरमाइन यू एंड वी बोथ, यू विल डिटरमाइन टी एंड वी बोथ एंड वी विल डिटरमाइन टी एंड यू बोथ. सो वहां पे टी यू वी तीनों कैंडिडेट की जाएंगी. इसीलिए नो सच फंक्शनल डिपेंडेंसी विल एग्जिस्ट जहां पे तुम्हारा 2NF या 3NF वायलेट हो. और पहले वाले टेबल में सिर्फ s है एट्रीब्यूट, तो सिर्फ s विल डिटरमाइन इटसेल्फ. समझ रहा है? तो देखने वाली बात यह है कि सेकंड टेबल में ओनली t डिटरमाइंस u एंड u डिटरमाइंस v के बेसिस पे तुम ये नहीं बोल दोगे योर t इज कैंडिडेट की, ठीक है? तुम सिर्फ वो डिपेंडेंसीज के बेसिस पे नहीं बोलोगे. अगर याद होगा तो मैंने बताया था व्हेनेवर वी फॉर्म डिपेंडेंसीज फॉर न्यू टेबल यू हैव टू कंसीडर एग्जॉस्टिव थिंग, ठीक है? तुम्हें देखना है कि ऑल दोज डिपेंडेंसीज व्हिच आर पॉसिबल, ठीक है? सो t डिटरमाइंस u भी आएगा, u determines v भी आएगा and then accordingly u can also determine t and v and v can determine t and u also, because हम parent table से पूरे functional dependencies import करके we check all which functional dependencies will be applicable for new table. Correct? Yeah. Right? Answer would be D. तुम कैसा भी splitting ले लो, 2 को एक जगह रखो, 3 को एक जगह रखो, कुछ भी कर लो. So next one. So R ABCD relation, which of the following does not have a lossless join dependency preserving BCNF decomposition? So BCNF नहीं है basically. What can you say? So first derive candidate key for each of the functional dependencies set. अगर LHS में कोई भी functional dependency के LHS में you don't have a candidate key, then बस कट हो गया वो option. Second में I can see each attribute नहीं बिकॉज साइकिल नहीं है. हाँ सॉल्व करो, बोलो क्या आएगा आंसर. ए ऑप्शन होना चाहिए ना, क्योंकि ए इज अ कैंडिडेट की है एंड बी तो नहीं हो सकता क्योंकि बी बस बी सी डी डिटरमाइन कर रहा है, ए को नहीं कर पा रहा है. ठीक है. देन सेकंड बी ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि बी ए बी सी तीनों कैंडिडेट कीज है और तीनों आ रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज में लेफ्ट हैंड साइड में. देन बी ऑप्शन में तीनों कैंडिडेट कीज है. आओ, ए क्लोजर विल बी BC ABCD, बी क्लोजर विल बी BCD, सी क्लोजर विल बी CD, डी क्लोजर सिर्फ D होगा. ओके हाँ रॉन्ग हो गया, सही है, बी भी आएगा उसमें. एंड सी सी का कैंडिडेट की क्या आएगा? ए का कैंडिडेट की ना ए भी आएगा, ए भी आना चाहिए. सी तो नहीं हो सकता, बस उतना ही है, तो सी भी ऑप्शन होना चाहिए. ए बी और BC नहीं आएगा, या बी सी आएगा. BC भी कैंडिडेट की आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज इन RHS यू डोंट हैव B, इसीलिए यू कंसीडर ऑल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल विद B. सो यू कैन से पहले तुम B+ लोगे, B+ में सिर्फ B आएगा, नॉट पॉसिबल. अगेन आगे जाओ, पहले AB लो, फिर BC लो, फिर DB लो. तो DB में सिर्फ DB आएगा, BC में यू विल गेट एवरीथिंग बिकॉज C कैन डिटरमाइन AD, तो C के इसमें सिर्फ CAD आएगा. अगर उसमें B भी लगा दिया तो ABCD चारों आ जाएंगे. सेम गोज विद AB में तो दिख ही रहा है कि ABCD चारों आएंगे. देन AB एंड BC, ठीक है. बट उससे भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है
बिकॉज सी डिटरमाइंस एडी, एलएचएस में सिर्फ तुम्हारा ये है तुम्हारे पास सीएसएफ। ऑप्शन डी तो I बीसीएनएफ guess ये क्वेश्चन में डज नॉट नहीं डज होना चाहिए था, डज हैव अ होना लॉसलेस ड्राइव, राइट? सो तुम्हारा आंसर डी आएगा। क्यों? बिकॉज ए इज अ कैंडिडेट की ओवर देयर, ए कैन डिटरमाइन ए बी सी डी ऑल, ठीक है? सो ए इज अ कैंडिडेट की, एलएचएस में ए की फंक्शनल डिपेंडेंसी और एलएचएस में जो भी है वो की है। सो वहां पे नॉट को हटा देना, बस डज रहने दो, डज हैव अ लॉसलेस ड्राइव। फाइन। और है क्या? नो और नहीं है। भैया एक रिलेशनल में एक डाउट था और एक इसका भी है कि आपने एक मेंशन किया था कि कैंडिडेट की मतलब जो